द सघन गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंटरेक्टिव सेशन 1 सर्विस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड अंतर्गत आयोजित आ प्रोग्राम में हूँ चेम्बर वती आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आ प्रोग्राम माटे आपने इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन અને વરાછા કતારગામ જ્વેલર એસોસિએશનનો સહકાર પણ મળ્યો છે। મિત્રો, આપણે ગુજરાતથી લકી છીએ કે વર્લ્ડનું છઠ્ઠું ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ ગાંધીનગરમાં કાર્યરત થયું છે, એટલે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે। અને કઈ રીતે કામ કરે છે, કઈ રીતે એમાં સભ્ય બની શકાય, તમે બધા જ્વેલરી સાથે સંકળાયેલા સોનેરી તાર લાવો છો, તમને આઈડિયા હશે, કદાચ ના હોય તો આજે સાહેબ આપણને પૂરેપૂરી જાણકારી આપવાના છે। હવે આપણે વિધિવત પ્રારંભ કરીએ કે ચેમ્બરના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રીમતી વઘેસિયાને વિનંતી કરું કે આપ સૌનું શાબ્દિક સ્વાગત કરે। ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ। કોઈ પણ ધંધો કરતા હોઈએ આપણે તો આપણી દ્રષ્ટિ હંમેશા એ ધંધો કેમ વધે અને એમાંથી નફો પ્રોફિટ વધારે કેમ કરી શકીએ ઓછી મહેનતે, એવો જ આપણો પ્રયાસ હોય ને। ઘણીવાર એવું બને કે આપણે ખૂબ મહેનત કરતા હોઈએ, ખૂબ સક્રિય હોઈએ, બહુ બધી કાળજી રાખતા હોઈએ, તેમ છતાં ઘણીવાર એવું થાય કે ધંધાને જે સ્કેલ ઉપર લઈ જવું જોઈએ એ લઈ જઈ શકતા હોતા નથી। ગૂગલ, ફેસબુક જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ આવી, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ જેવી MNC આવી અને એક લેવલથી ઉપર સ્કેલ કરીને કામ કરવા લાગી ત્યારે આપણી આંખો થોડી ખુલી કે ધીસ કેન બી ઓલ્સો હેપન અને આપણે પણ આવું કરી શકીએ। તો મને એવું લાગે છે કે સરસ મજાની જમીન ફળદ્રુપ ખેડૂત પાસે હોય, જાળી ડાખરા બધા અંદર પડેલા હોય અને ખેડૂત એમને વિચાર્યા કરે કે આમાં હું ઉત્પાદન કેમ નથી લઈ શકતો। इतनी अच्छी जमीन होने के बावजूद मेरा उत्पादन क्यों नहीं है और मेरा व्यापार क्यों नहीं है, तो ये जमीन ने पारखवानी क्षमता खेडूतनी होवी जोईए અને જમીનને જાળા ડાખરા કાંટા ડાખરા બધું સાફ સફાઈ કરીને વરસાદ આવતા પહેલા ખેડૂત એને બરાબર તૈયાર કરે અને પછી ખાતર પોતર નાખીને જે ખેડૂતના દીકરા છે કે ખેતીની સાથે સંકળાયેલા છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે, અને પછી ખાતર પોતર નાખ્યા પછી વરસાદની વાવણી થવા પહેલા કલ્ટિવેટ કરીને એ જમીનમાં પછી વાવણી કરે અને સરસ મજાનો વરસાદ ઉપર થાય તો આપણે સારો પાક લણી શકીએ। આ બાબતમાં કોઈને કોઈ શંકા હોય એવું મને નથી લાગતું। એવી રીતે IFSC દ્વારા IIBX નું આ એક સરસ મજાનું ગોલ્ડ મેળવવાનું ખેતર છે। તમારા જ્વેલરીના બિઝનેસમાં ગોલ્ડ મેળવવું અને ડાયમંડ મેળવવા આ બંને જ્વેલરી માટે રો મટીરિયલ મોટામાં મોટું, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, એ છે। તો એ ગોલ્ડ ઓછી કિંમતે અને આપણી શરતોએ કેમ સારું મળી શકે? ડાયમંડનું સેન્ટર તો આપણું સુરત ઓલરેડી છે, બાકીના જે સ્ટોન કંઈ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી કંઈ પણ આવતા હોય તે આપણે મેળવી શકીએ છીએ, પણ એનું પ્રમાણ ઓછું છે। પણ આ ગોલ્ડને આપણે આપણી શરતોએ સારી રીતે મેળવી શકીએ એ માટે ખૂબ સારો ઉમદા ઉદ્દેશ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો છે અને એના કારણે એ બાબતોને લઈને IFSC માં ગિફ્ટ સિટીમાં ગાંધીનગર ખાતે એક IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज नो शुभारंभ थोड़ा समय पहला थयो। एनो आशय ये छे के ज्वेलरी नु जे मैन्युफेक्चरिंग करे छे सोनी लोको छे ए पोतानुं सोनानुं जे काम छे एने આગળના વર્ષોમાં ટ્રેડિશનલ વેમાં જે કામ થતું હતું એના બદલે
ઇઝીલી સારી રીતે અને ચીપર રેટથી કેમ થાય એટલે આ વર્લ્ડનું જે ફર્સ્ટ લંડનમાં જે સ્ટોક એક્સચેન્જ છે એવું આ વર્લ્ડનું છઠ્ઠું આ એક્સચેન્જની સ્થાપના થઈ, જે આપ સૌના માટે ખરેખર ખૂબ ઉપયોગી છે. એ બુલિયન એક્સચેન્જની માહિતી આપવા માટે અને એના અંગેની કાંઈ પણ તમને દ્વિધા હોય, પ્રશ્નો હોય કે કેમ સરળતાથી થઈ શકે, તો એ ક્વેશ્ચન આન્સર પણ આપણે કરીશું. ઓનરેબલ અશોક ગૌતમ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. હજુ આજે જ તેઓ લંડનથી સીધા આવ્યા છે અને અહીંયા આજે બપોરે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, આપણી સાથે માહિતી શેર કરવાના છે. આશય એ છે કે આપણા ધંધાને વિકસાવવા માટે ગોલ્ડને અનુલક્ષીને શું થઈ શકે, એમની જે પોલિસીઓ એ સમજીને, એમના જે પ્રેઝન્ટેશન હોય જોઈને, એમના વિડીયોઝ યુટ્યુબ પર પણ અવેલેબલ છે જોઈને આપણે આપણા પ્રશ્નોને જાળી ડાખરા થોડાક દૂર કરી અને સારું વાવેતર ધંધાનું થાય તો આપણે સારો પાક મેળવી શકીએ. એવા આશય સાથે આયોજિત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા હંમેશા એવો પ્રયાસ રહ્યો છે કે દરેકે દરેક ધંધા અને વ્યવસાયને ચેમ્બરના માધ્યમથી એક સારું પ્લેટફોર્મ મળે, એમની જરૂરિયાતો જે છે એ ઓથોરિટી સુધી પહોંચાડવામાં આવે, એને સોલ્વ કરવાના પ્રયત્નો થાય અને આપ સૌ આપનો ધંધો વિકસાવી શકો. એવા ઉમદા આશય સાથે SGCCI દ્વારા આજે ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન ઓન સર્વિસીસ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ IFSC લિમિટેડની જે સર્વિસીસ છે એ આપના સુધી પહોંચે એ માટે આજનો આ પ્રોગ્રામ આયોજિત થયું છે. ત્યારે ઓનરેબલ ચીફ ગેસ્ટ ઓફ ટુડેઝ ફંક્શન એન્ડ CEO and MD of India International Bullion Exchange IFSC લિમિટેડ શ્રી અશોકભાઈ ગૌતમભાઈ, આપણા ચેમ્બરના ઓનરેબલ સેક્રેટરી ભાઈ શ્રી ભાવેશભાઈ ટેલર, ચેમ્બરના ઓનરરી ટ્રેઝરર સાથી મિત્ર ભાઈ શ્રી ભાવેશભાઈ ગઢિયા, વરાછા કતારગામ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાઈ શ્રી નિલેશભાઈ. He is also chairman of Chapter of India Bullion and Jewellers Association Limited. ગ્રુપ ચેરમેન અને જેઓ MOC કરી રહ્યા છે એવા આદરણીય શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયા, ઇન્વાઇટેડ ગેસ્ટ, મેમ્બર્સ ઓફ ધ SGCCI, participants and friends from press and media. I wholeheartedly welcome all of you, my dear friends, to this wonderful session on services of India's first international bullion exchange at IFSC, which was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Bhai Modi on 29th July 2022. Immediate post its opening as one of the first few chambers to have made any formal visit to the India's first bullion exchange. આ સ્થપાયા પછી જુલાઈમાં સ્થપાયા પછી ઓગસ્ટમાં આપણી SGCCI ની એક ટીમ જ્વેલર્સ લોકોની આ એક્સચેન્જની મુલાકાતે ઓગસ્ટમાં ગઈ હતી. ફ્રેન્ડ્સ, there are various bullion markets across the globe in locations like London, New York, Tokyo and Zurich, and now here in Gandhinagar. The London bullion market is primary bullion market. Although India is the world's second largest gold consumer with an annual demand of nearly 1,000 tons, before opening up the IFSC Limited, earlier it lacks many key elements of an efficient gold ecosystem. The gold market here is plagued by fragmentation, with the prices varying significantly across the channels and locations. The quality of gold also varies widely. Jewelry rather than gold bars, gold coins or gold-linked financial products still dominates retail demand. Large jewelers and traders mostly import refined gold from international markets such as Dubai, causing loss of economic value and jobs in India. Gold exchanges and related infrastructure set up by some of the Asian countries appear to have greatly enhanced the efficiency of their gold markets by way of efficient price discovery, quality assurance, active retail participation, use of gold bars, gold coins and gold-linked financial products instead of jewelry for investment purposes. Greater integration with financial markets
through gold leasing and lending and acting as channel for gold recycling. Given the global scale market demand in India, there exists a viability of establishing a spot gold exchange for trading in gold for buying and selling standardized quality gold in India. An interesting survey was conducted by IIM Ahmedabad few years back, in which it was discovered that large players procure gold directly from miners and traders in overseas gold hubs, often at a discount to the benchmark London bullion market prices. Second, medium and small jewelers mostly depend on large players for supply of gold and face significant cost disadvantages. ગવર્મેન્ટને આ ખબર છે કે નાના અને મીડિયમ જ્વેલર્સ જે છે એ જે ગોલ્ડ મેળવે છે એની કોસ્ટ પેલા મોટા કરતાં થોડી વધારે ચૂકવવી પડે છે. એટલે ગવર્મેન્ટ ઇઝ એન્હાન્સિંગ to increase these facilities. Third, resellers are a significant source of gold for jewelers and refiners. However, there is no transparency in the activities associated with reselling of gold into the market. Against this backdrop, participants largely felt that a national level spot exchange would benefit stakeholders through transparency in pricing, standardization. Most of the small jewelers are to source gold through a gold exchange, and perhaps surprisingly so are the large players. Gold is tightly regulated in India, and currently only nominated banks and agencies approved by the central bank can import gold and sell to dealers and jewelers. IIBX, with its technology-driven solutions, will facilitate transition of Indian bullion market towards a more organized structure by granting qualified jewelers a direct access to import gold directly through the exchange mechanism. China, the top gold consumer, runs such a bourse where all domestic production and imported gold has to be bought and sold. India imported 1069 tons of gold in 2021, up from the 430 tons a year ago. The Multi-Commodity Exchange MCX and National Commodity and Derivatives Exchange NCDEX offer gold futures contracts in India, but there wasn't any physical exchange to buy gold. India's efforts to monetize gold will also derive tremendous support from transparent bullion trading system in Gift City. Friends, we have with us a very important guest today, Honorable Ashok Gautam, who leads this transition in India as CEO and MD of India's first bullion exchange. I am sure that today's session will help all of us in discovering the right price for the buying gold, and we will be collectively saving millions through transaction on India's first bullion exchange in this session. I once again welcome all of you, my dear friend, including especially who have made lots of efforts. Honorable Nainesh Bhai Pachigar, the Chairman of Bullion Committee SGCCI, Chairman of India Bullion and Jewelers Association Gujarat, આ પ્રોગ્રામ ઇનિશિએટ કરવા માટે જેમણે ખરેખર ખૂબ મહેનત કરી છે, પ્રયત્નો કર્યા છે, ભાઈ શ્રી અહિલેશભાઈ, નિલેશભાઈ, અમારી SGCCIની ટીમ અને ઓફિસ બેરર્સ તમામને આવકારવાની સાથે સાથે હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પણ આપું છું કે આ એક નવી શરૂઆત સુરતમાં એવી રીતે થવા જઈ રહી છે જ્યારે સુરત ઇઝ શાઇનિંગ એઝ અ સ્પોટ ઇન ધ સ્કાય ઓફ ધ વર્લ્ડ under which jewelry is emerging as a great business next to textile and diamond. ડાયમંડ ને ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે આપણે ઓળખતા હતા ત્યારે એટલા બધા મેન્યુફેક્ચરર્સ, એટલા બધા ટ્રેડર્સ ને એટલા બધા વેપારીઓ આ જ્વેલરીના બિઝનેસમાં છે, તો વાય વી શુડ નોટ હેવ અવર બેનિફિશિયલ પોલિસી. અને એ અર્થમાં એ ભાવ સાથે અને એ ઉદ્દેશ સાથે જ્યારે
આ સેશનનું આયોજન થયું છે, ત્યારે આપણે મેક્સિમમ એનો લાભ લઈ આપણે સૌ આપણા બિઝનેસને નવી ઊંચાઈ પર લઈ જઈએ ને એમાં આપ સૌ સફળ થાઓ એવી મારી શુભકામના સાથે આઈ વન્સ અગેન વેલકમ ઓલ ઓફ યુ માય ડિયર ફ્રેન્ડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સાહેબ શ્રી, આપણે તો બુલિયન એક્સચેન્જ શું કામ કરે છે અને કઈ રીતે કામ કરે છે એ જાણવાનો આનંદ અને ઉત્સાહ હોય, પણ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ IFSC લિમિટેડ ના MD અને CEO ને પણ એટલી જ ઉત્સુકતા છે કે સાહેબ ગઈકાલે લંડનથી ટ્રાવેલિંગ કરીને આવ્યા છે તો પણ એમના ચહેરા ઉપર કે થાક વર્તાતો નથી ને ઉત્સાહથી આજે અહીંયા આવ્યા છે. તો આપણે એમનું સ્વાગત કરવા માટે ચેમ્બરના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રમેશભાઈ વગાસિયા, ઓનરરી સેક્રેટરી શ્રી ભાવેશભાઈ, ઓનરરી ટ્રેઝર ભાવેશભાઈ કડિયા, કમિટી ચેરમેન નિલેશભાઈ વરાછા જ્વેલર એસોસિએશન અને નૈનેશભાઈ મળીને સાહેબને બુકે અને મોમેન્ટથી સ્વાગત કરશે. એક મિનિટ આ સાથે ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર એસોસિએશન લિમિટેડ ગુજરાત ચેપ્ટરના ચેરમેન નૈનેશભાઈ પચ્ચીગર પણ એમના કમિટી વતી શ્રી અશોકભાઈ ગૌતમનું સન્માન કરવા માંગે છે. બિપિનભાઈ પંચાલ સાથે જોડાશે. તાળીઓના ગણગણથી વધાવી લઈએ. થેન્ક યુ. ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ IFSC લિમિટેડ શું કામ કરે છે અને આ પ્રોગ્રામ કેમ રાખ્યો છે, એનું શું બેનિફિટ થશે એના માટેની માહિતી તમને આપવા આવી રહ્યા છે નૈનેશભાઈ પચ્ચીગર, કે ઘણી મહેનત કરી છે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવા માટે. અને નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ પણ એ અત્યારે તો આપણને બધું અહીંયા સાહેબ કહેવાના છે, પણ ફિઝિકલ વિઝિટ માટે પણ નૈનેશભાઈ પચ્ચીગર ઘણા ઉત્સાહી છે, તો એની માહિતી પણ આપશે. અને સાથે સાથે આપણા ચીફ ગેસ્ટ છે અશોકભાઈ ગૌતમ, એમનો ઇન્ટ્રોડક્શન પણ કરાવશે. નૈનેશભાઈ પચ્ચીગર. Thank you, Parishbhai. On the dais, dignitaries, our chamber vice president, dynamic vice president, and my close friend Rameshbhai Vagasia, and our chief guest and IIBX chairman Ashokbhai Gautam, our secretary Bhaveshbhai Taylor, our treasurer Bhaveshbhai Kadia, and Varacha Katargam Association Shri Nileshbhai Langaria, and treasurer group chairman Pareshbhai Lathia. IIBX આપણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે IIBX નું અત્યારે જે આપણા લાડીલા વડાપ્રધાન અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જેનું ઉદ્ઘાટન 29મી તારીખે કર્યું, હવે કઈ રીતે કાર્યરત છે અને આપણે જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને બુલિયન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવી રીતે આપણે ફાયદો થઈ શકે છે. ને ચેમ્બર હંમેશા આજે આપને જ્ઞાત હશે કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, ને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે જે આજે ટેક્સટાઇલ હોય કે ડાયમંડ હોય, કેમિકલ હોય કે જ્વેલરી હોય, તો એને માટેનું એક સેશન આપણે આજે ગોઠવ્યું છે. આ જે ગોલ્ડ એક્સચેન્જ છે તે ન્યુયોર્ક, શિકાગો, લંડન, દુબઈ, શંઘાઈમાં સ્પોટ એક્સચેન્જ છે, ને આ દુનિયાનું 6ઠું ગુજરાતમાં ગિફ્ટ સિટીમાં આપણે આ થઈ રહ્યું છે. અને સોનાની ભાવની વિવિધતા અને ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જની શરૂઆત, તેનો સીધો લાભ ગ્રાહકને મળી શકે છે.
એ માટેનું આ એક આપણે સેશન ગોઠવ્યું છે અને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને આ માટે બેનિફિટ થાય એટલા માટે જ ચેમ્બરે આ એક સેશનનું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે. શ્રી અશોકભાઈ ગૌતમ, हमारा गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, हाँ प्लीज, हमारा वराछा कतारगाम एसोसिएशन ना प्रेसिडेंट श्री प्रतापभाई चोडवड़िया, प्लीज. अशोकभाई અમારું આ એક વરાછા કતારગામ જે એસોસિએશન છે સુરતમાં એટલું એક્ટિવ એસોસિએશન અત્યારે લગભગ 2019થી સ્ટાર્ટ થયું છે ને અત્યારે એમનું જે એક્ટિવ છે કે આજે દરેક જ્વેલર્સને કે દરેક બુલિયનને જે એ લોકો જે હેલ્પને જે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીના માણસોને જે ગ્રાઉન્ડ લેવલનું વર્ક કરે છે એને માટે પણ અમે પ્રતાપભાઈ, નિલેશભાઈ ને આખી વરાછા કતારગામ એસોસિએશન ટીમ is a great work for that. આપણે અશોકભાઈનો પરિચય જે રીતે હું વાત કરું છું કે અશોકભાઈ ગૌતમ જે ગિફ્ટ સિટી ખાતે ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ IFSC લિમિટેડ IIBX ના પ્રથમ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO છે. તેઓ ફેબ્રુઆરી 2022માં તેમની વર્તમાન નેતૃત્વની ભૂમિકામાં IIBX માં જોડાયા હતા. શ્રી ગૌતમ બેન્કિંગ અને નાણાકીય વ્યવસ્થાના વિવિધ સિદ્ધાંતોના 36 વર્ષથી વધુના અનુભવ ધરાવતા ફાઇનાન્સ અને પ્રોફેશનલ છે, જેમ કે ટ્રેઝરી, બુલિયન, નાણાકીય સંસ્થાઓ, ટ્રાન્ઝેક્શન બેન્કિંગ, કેશ મેનેજમેન્ટ ની સેવાઓ અને રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ, ક્રેડિટ, ઇન્ટરનેશનલ બેન્કિંગ, ટ્રેડ ફાઇનાન્સ વગેરે. શ્રી ગૌતમ તાજેતરમાં જ IDBI બેંક લિમિટેડના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને હેડ ટ્રેઝરી હતા, જેમાં રોકડ વ્યવસ્થાપન સેવાઓ અને સરકારી વ્યાપાર જૂથ અને નાણાકીય સંસ્થાઓની વધારાની જવાબદારીઓ હતી. તે પહેલા એક્સિસ બેંકમાં તેમની 11.5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓ એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને હેડ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગ્રુપ FIG હતા અને હેડ ગ્લોબલ માર્કેટમાં ટ્રેઝરી અને હેડ ટ્રાન્ઝેક્શન બેન્કિંગ, કોર્પોરેટ અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના નેતૃત્વના હોદ્દા ઉપર હતા. એક્સિસ બેંકમાં તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે 8 વર્ષથી વધુના સમય સુધી બુલિયન બિઝનેસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં તેમના 22 વર્ષથી વધુના અનુભવ દરમિયાન શ્રી ગૌતમ હોંગકોંગ ખાતે બેંકની પ્રથમ સેન્ટ્રલ ટ્રેઝરીના વડા હતા, જેમાં સિડનીથી માલે સુધીની તમામ શાખાઓના સિંગાપોરથી ઓફિસમાં ટ્રેઝરી અને ઓવરસીઝ બ્રાન્ચનું ન્યૂ ખાતે પ્રાદેશિક અને ડીલિંગ રૂમનો સમાવેશ થતો હતો. દિલ્હી અને અન્ય નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ વચ્ચે તેમણે ઘણી બધી બુલિયન માર્કેટની પણ સેવાઓ પ્રદાન કરી હતી. એવા શ્રી અશોકભાઈ ગૌતમને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી દઈએ. આપણી વચ્ચે અશોકભાઈ ગૌતમ જેઓ પોતાના બિઝી શેડ્યુલ ને હમણાં જઈને આપણે એમઓસીએ જે કીધું કે એમને ગઈકાલે જ લંડનથી સીધા જ્યારે લેન્ડ થયું ને સીધા એમને સુરત માટેનું આપણે આમંત્રણ આપેલું હતું કે સાહેબ અમે એક સુરતમાં ઇન્ટરેક્ટ, મારી જ્યારે આજે 10 દિવસ પહેલાં જ્યારે એમના PA સાથે વાત થયેલી હતી કે અમારે જેટલું બને એટલું જલ્દી અમારે ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન ગોઠવવું છે ને એમને તરત જ આ 12 તારીખ અમને આપી હતી કે 12 તારીખે આપ ગોઠવો, અમને વાંધો નથી. ને ચેમ્બરે એમાં અમને જરા પણ એના વગર કે ભાઈ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીને જ્યારે પણ લાભ થશે અમે આ સેશન ગોઠવીશું. ને અમારા પ્રમુખ જે આજે હાજર નથી, પોતાના અંગત કામ માટે આજે આઉટ ઓફ સુરત છે, તે હાજર નથી રહી શક્યા, એમની પણ અમે નોંધ લઈએ છીએ. ને આજે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આપણી વચ્ચે ઘણા બધા મહાનુભાવો કે જે બુલિયન ટ્રેડર્સો પણ છે જે હાજર છે, તેની પણ હાજરીની અમે નોંધ લઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી અશોક ગૌતમનો તો વધારે સમય નહીં લેતા, સાહેબને જ વિનંતી કે અમને સમજાવો कैसे आपसे जुड़े और क्या बेनिफिट हो सकता है. मंच पे जो महानुभाव हैं उन सबको सादर प्रणाम. रमेश भाई हैं, नैनेश भाई हैं, नीलेश भाई हैं, प्रताप जी हैं और 2 भावेश जी हैं और परेश जी, थैंक यू.
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इनफैक्ट लंदन में कल रात का मैसेज आया कि वहाँ बर्फ़ गिरी और पूरे हफ्ते वहाँ टेम्परेचर -2 -3 और उसके बीच में घूम रहा था। दिन में भी धूप निकली 2-3 दिन, लेकिन टेम्परेचर माइनस में था। तो मैं सोचा था कि अभी गांधीनगर जाऊंगा, वहाँ भी ठंडा, तो मैंने कहा सूरत में आप सबकी गर्मजोशी का आनंद लेके थोड़ा इस ठंड को दूर किया जाए। तो इसलिए उन्होंने जब आमंत्रित किया, मैंने कहा बिल्कुल सूरत आता हूँ मैं, थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा गर्मजोशी आप लोगों ने जो आज दिखाई, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, पहली चीज तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे सूरत आने में वक्त लग गया। शायद मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था सूरत, लेकिन अभी क्या होता है ना कि जो चीज बिल्कुल आपके दिल के पास है और आंखों के सामने है, तो आप कहते हैं यहाँ तो अभी आ जाएंगे, बस अभी आते हैं। तो अभी आते करते हुए आप मतलब सिंगापुर, दुबई, लंदन होके भारत के और हिस्सों पे हुआ है, लेकिन सूरत नहीं आ पाए। लेकिन जैसे ही सूरत ने आवाज दी तो मैं चला आया। और शायद मुझे आवाज किसी के देने का रुकना नहीं चाहिए था, मुझे खुद ही आना चाहिए था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन अब क्या है, देर आयत दुरुस्त आयत, और दुरुस्त आयत सूरत आयत। तो जब सूरत आ ही गए हैं तो आपको बता दें कि कैसे कैसे क्या चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज साहब ने जब अपना स्पीच दिया तो मैं गुजराती थोड़ा बहुत फॉलो कर गया था, क्योंकि शुरू में तो मैं सिर्फ केमचो जानता था, लेकिन धीरे धीरे अभी हमारी टीम में भी काफी गुजराती भाई हैं और अब मैं गांधीनगर में पोस्टिंग हो गया है, तो सुनता हूँ तो धीरे धीरे पकड़ लेता हूँ। तो साहब ने भी बोला अपना, जब गुजराती में बोला, फिर बाद में इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया ऑलमोस्ट। तो एक बहुत क्रिटिकल डेट है जिसको मैं बहुत अहम मानता हूँ, वो है 29 जुलाई, 29 जुलाई इस साल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने IIBX का लॉन्च किया इवेंट गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, IFSC एरिया में। ही केम इन द IFSC एरिया टू लॉन्च इट। 1500 से ऊपर का भीड़ था, ग्लोबली टेलीकास्ट इवेंट था। 5 कॉन्टिनेंट से बुलियन से जुड़े हुए लोग वेब के थ्रू प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भाषण दिया गया, जो पूरा प्रोग्राम था, उसको देख रहे थे। और वो प्रधानमंत्री जी के सामने एक स्क्रीन रखी थी, वहां उनको भी दिख रहा था कि 5 कॉन्टिनेंट के बुलियन के लोग जुड़े हैं। वो एक और उस दिन की अगर आप स्पीच देखेंगे, यूट्यूब पे है, तो माननीय मोदी जी ने काफी चीजें IIBX के बारे में बोली, लेकिन उससे बड़ी चीज, जब स्पीच खत्म हो रही थी उससे पहले उन्होंने 5 या 7 मिनट फिर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर बोला। आप उसको सुनिए, और बड़ा उम्मीदें हैं उनका कि मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी कितना बढ़िया तरह से कर रहा है। उन्होंने डायरेक्ट एड्रेस किया आप लोगों को उस स्पीच में। मैं वो बात तो नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, अब हमको उसको उस राह पे चल के उसको पूरा करने का है। उसके तहत हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध माने कमर कस के लगे हुए हैं, बिल्कुल जुटे हुए हैं। और लेकिन खाली उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बात मैं अभी सबको बता देता हूं कि अभी जो फेज है ये सब लोग पूछते हैं कि साहब आपने शायद जब मैं आया तो पूछा कितने लोग जुड़ गए, वो तो कहिए एक अच्छा नंबर है, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं साहब कल कितना ट्रेडिंग हुआ। साहब मेरे पास ये नंबर अभी बहुत अच्छे नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूं कि साहब अभी जो मैदान तैयार हो रहा है, अभी खेती तैयार हो रही है, अभी प्लोइंग का टाइम है, जो खेत जोतते हैं ना, तो उसका टाइम चल रहा है। और जब फसल आएगी वो इतनी बढ़िया लहलाएगी कि ना आपको उसमें से मतलब आपको फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, और वो फसल लगातार आती रहेगी, और वो फसल ऐसी होगी जिसका उपयोग सभी लोग कर पाएंगे। तो ये एक फेज है, इसमें आप अभी इससे मत हतोत्साहित होइए कि साहब अभी एक्सचेंज पे नंबर कम है या अभी लोग कम है। लोग कम है तो साहब मैं आया हूं, आप लोग जुड़िए, वो नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। और जो लोग अभी ट्रेडिंग कम है, तो जब वो धीरे धीरे जो लोग जुड़ते जाएंगे, वो लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा कारोबार करते जाए। मैं नहीं कह रहा आप सारा कारोबार पहले दिन ही एक्सचेंज से करिए, पर धीरे धीरे करिए तो वो नंबर भी बढ़ेगा। वो होगा ना साहब, कैसे काफिला बढ़ता जाता है कि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, हम आगे चलते गए। तो वो वाली फेज है ये। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि ये सब चीज क्या है और क्या हो रहा है, कैसे बना है। देखिए, मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं लाया हूं,
मेरा ये मानना है कि अगर मैं जो बोल रहा हूं उससे मैं आपको बांध सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो ना तो प्रेजेंटेशन आपको बांध पाएगा ना मैं आपको बांध पाऊंगा। तो बेटर है कि मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं और एक हम उसका विवरण करेंगे जो आपको अपने माइंड में बिठाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सवाल जवाब करें। Q&A का एक सेशन है, वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो तो लिखा है इसमें, लेकिन उसके बीच में भी आप जब चाहे रोक सकते हैं, मुझे जो चाहे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे किसी भी चीज को, अगर आपकी समस्या है या कोई दिक्कत है तो उसका हल ढूंढने आया हूं। और हल से मुझे याद आया, मैंने आपको कहा अभी हम खेत जोत रहे हैं, तो एक्चुअली हम हल चला ही रहे हैं वहां पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कहाँ हैं, क्या हैं और क्यों हैं। इस बारे में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो आज चेयर कर रहे हैं इवेंट को, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई। अगर आपने थोड़ा सा देखा हो, उन्होंने एक शब्द यूज किया फ्रैगमेंटेड। तो जो पूरी इंडस्ट्री इस समय फ्रैगमेंटेड है गोल्ड की, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। किन्हीं साहब को $1 प्रीमियम पे मिलता है, किसी एक्सपोर्टर साहब को बोलो कहते हैं $14 प्रीमियम पे मिल रहा है, और ये बहुत सारी चीजें हैं। और सरकार का ये मानना है, और जैसा कि आज के जो चेयरमैन साहब हैं आपके चेंबर के वाइस प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने कहा कि 1000 टन का मार्केट है। तो ये सही है, पिछले साल कैलेंडर ईयर में 1000 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ। ऑन एन एवरेज 800 टन होता है। लेकिन एक नंबर और आपको बताता हूं, 25,000। 25,000 क्या है? 25,000 टन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से गोल्ड है जो आप सबके पास है। इंडिया हाउस होल्ड एंड टेम्पल ट्रस्ट रिलीजियस प्लेसेस और सब जगह कुल मिला के WGC का ये एस्टिमेशन है कि 25,000 टन है। ये उनका एस्टिमेशन है तो मैं मान लेता हूं, मेरा अपना एस्टिमेशन थोड़ा और ज्यादा का है। लेकिन ये सच है कि हमारे यहां कल्चरली एफिनिटी रही है गोल्ड के साथ। घर में परिवार में नया बच्चा आता है तो दादा दादी नाना नानी एक गोले सोने की चेन दे देते हैं बच्चे को, है ना। मुंह दिखाई बहू आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ गोल्ड का उनको दिया जाता है, जिसको आप दहेज बोलें, स्त्रीधन बोलें, या मैं प्रथा कुप्रथा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हमेशा से जो स्त्री का एक पैसा रहा है, स्त्रीधन जिसको बोलते हैं, गोल्ड उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। एज पर लॉ और एज पर वेरियस दिस थिंग ट्रेडिशन वो उसी का है। तो और हमेशा से ये रहा है कि जब भी परिवार में कहीं भी थोड़ा बहुत पैसा जमा होता है तो सब जाके गोल्ड ले लेते हैं। तो गोल्ड हमेशा से एक एफिनिटी रही है। भारत की आबादी 130 करोड़ बोलते हैं, 132 हो गई, 35 हो गई, या बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात सच है कि अगले 10 से 11 साल में चाइना से ऊपर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो ग्रोथ है, जो IMF ने ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है, वो 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्टेड है और वो चलती रहेगी। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगले 30 से 50 साल भारत का टाइम है और आप सबके सहयोग से भारत विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा। शक्ति मतलब सिर्फ हथियार और उससे नहीं है। शक्ति जैसे हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी को लीड कर पाएंगे, और आज की तारीख में दुनिया हमारी तरफ देख रही है। उसमें एक प्रोपोर्शन है जो एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का है, और वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जितना कमाएगी उसके हिसाब से गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ेगा, गोल्ड का जरूरत बढ़ेगी। और रुपी टर्म में अगर हम देखें तो गोल्ड का प्राइस हमेशा से बढ़ता ही है। कभी नीचे ऊपर हो गया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो कोई करता नहीं है, जिसके पास गोल्ड चला गया शायद ही बिकता है। हैविंग सेड दैट, तो सरकार का ये मानना था कि इस गोल्ड व्यवसाय को एक एक्सचेंज के ऊपर लाया जाए, जिससे कि भारत में जितना भी गोल्ड इंपोर्ट होता है, वन ऑफ द चैनल्स गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए एक एक्सचेंज बनाया जाए। इसके बारे में आपको भी बताया भी गया। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग दुनिया भर में आज की तारीख में जो भी, मैं अभी खुद LBMA के इवेंट में था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि उनके एनुअल डे पे मैं स्पीच दूं LBMA के मेंबर्स को। बुधवार के वहां पे वो इवेंट था तो मैंने वहां पे स्पीच दिया था। तो अभी भी हम LBMA का प्राइस लेते हैं, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का क्या प्राइस है, उसके ऊपर कितना ऊपर है कितना नीचे है। आइडिया ये है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का जो प्राइस होगा वो IIBX के रेफरेंस से ऊपर या नीचे होगा। दैट इज द गोल। और वो गोल ये है क्योंकि हम फिजिकल मार्केट के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं।
गोल्ड की माइनिंग होती है अफ्रीका में, गोल्ड की माइनिंग होती है साउथ अमेरिका में, गोल्ड की माइनिंग होती है रशिया और चाइना में। गोल्ड का कंजम्पशन होता है चाइना, इंडिया और टर्की में। कंजम्पशन जो खरीदते हैं एक्चुअली, बाकी जगह कुछ नहीं है। लेकिन गोल्ड की ट्रेडिंग कहाँ होती है? लंदन में। अब उसी के लिए है कि क्या हम गोल्ड की ट्रेडिंग को इंडिया में ला सकते हैं, जिसके लिए एक इंटरनेशनल एक्सचेंज बनाया गया। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी चीजें करी। आपने गिफ्ट एसईजेड का नाम सुना है? ये गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के अंदर एक कार्व करके एक और टेरिटरी बनाई गई है जिसका नाम है गिफ्ट आईएफएससी। आईएफएससी का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पे जो भी काम हो रहा है वो इंटरनेशनल फाइनेंस की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो वहां पे हो रही हैं, और वो एक फ्री इकोनॉमिक जोन है। वहां पे डॉलर में सारा काम होता है या और फॉरेन करेंसी में काम होता है, और वहां पे कोई भी फॉरेन करेंसी का आना जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उसी के एक्सटेंशन में गोल्ड पे भी वहां कोई रोक टोक नहीं है। जैसे आज आपका गोल्ड जब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अंदर आ जाता है तो उसके बाद उसको बाहर भेजने की अपनी प्रक्रिया है। बुलियन एक बार अंदर आ जाएगा तो उसको बाहर भेजने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अभी आइडिया ये है कि क्योंकि बुलियन ट्रेडिंग एंड बुलियन वॉल्टिंग इन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज का दर्जा दिया गया है, तो वहां पे इस बुलियन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो फ्री जोन के हिसाब से होगा। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां पे गोल्ड रख सकते हैं और जब चाहे गोल्ड ले जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि साहब ये तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे काम कैसे होगा? अथॉरिटी क्या है? देखिए, इस समय यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं उनका रेगुलेटर है, आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरी हैं या यहाँ पे ब्रोकर भाई बहन हैं, उनके रेगुलेटर कौन है? सेबी। इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटर है इरडा। इसी तरह से पीएफआरडीए और भी रेगुलेटर्स हैं। बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी बनाई गई, जिसको आईएफएससी में एक यूनिफाइड रेगुलेटर बना दिया गया। मतलब वहां जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका रेगुलेटर एक है। अब आईएफएससी हमारा रेगुलेटर है। जब रेगुलेटर बन गया उसके बाद रेगुलेटर ने रूल्स बनाए कि बुलियन रेगुलेशंस क्या हैं, उनको पब्लिश किया गैजेट में। उसके तहत 5 इंपॉर्टेंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, ये तीनों एक्सचेंज के नाम आप जानते हैं। और अगर आपका कुछ भी इक्विटी में काम है तो आपके को डिपॉजिटरी के नाम भी जानते होंगे, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये पांचों मिलके एक इन्होंने होल्डिंग कंपनी बनाई, 20% सबका स्टेक है, और उस होल्डिंग कंपनी ने एक्सचेंज खोला। तो हमारे प्रमोटर्स कौन हुए? ये पांचों हो गए, राइट। अब यहां पे अलोंग विद एक्सचेंज एक डिपॉजिटरी भी है जो कि अगेन होल्डिंग कंपनी ने बनाई है, और इंटरनेशनल वॉल्ट्स हैं। गोल्ड की यहां जो भी ट्रेडिंग है इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। टुडे बाय मार्च वी विल ऑल्सो हैव फिजिकल सिल्वर। तो अभी हम गोल्ड की बात करेंगे, फिर जो भी कुछ मैं गोल्ड के लिए बता रहा हूं वो सब कुछ सिल्वर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। आज की तारीख में हमारे पास 3 इंटरनेशनल वॉल्ट्स हैं। सीक्वल का नाम आप जानते हैं, सीक्वल जो लोग गोल्ड में काम करते हैं। ब्रिंक्स है, इंटरनेशनल एजेंसी है। सीक्वल का भी इंटरनेशनल टाइप है लूमिस से। और तीसरा है मल्का मिंट। ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके वॉल्ट्स हैं, और ग्लोबल जो बैंक्स हैं वो उनसे डील करते हैं। उनके ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट हैं इन सिक्योरिटी एजेंसीज और वॉल्टिंग एजेंसीज से डील करने के लिए, क्योंकि वो गोल्ड का मूवमेंट हो रहा है। इट्स नॉट इजी, फिजिकल गोल्ड का मूवमेंट हो रहा है। टोटल कैपेसिटी एज ऑफ नाउ गिफ्ट सिटी में करीब 350 टन गोल्ड की है और 3500 टन सिल्वर की है। फिजिकल वॉल्ट्स हैं। आप कभी गिफ्ट सिटी आएंगे या पहले भी कुछ आपके ग्रुप्स आए हैं तो उन्होंने देखा होगा वहां पे फिजिकल वॉल्ट्स हैं। तो इकोसिस्टम में क्या हो गया, मैंने अभी आपको पूरी चीजें बता दी। रेगुलेटर हो गया आईएफएससी, एक्सचेंज हो गया, डिपॉजिटरी हो गई और
वॉल्ट हो गया। आप कहेंगे ये वॉल्ट तो समझ आ गया, एक्सचेंज समझ आ गया, डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होगी वो सिक्योरिटीज की फॉर्म में होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी बुलियन आएगा वॉल्ट में और अगर उसकी ट्रेडिंग होनी है एक्सचेंज पे तो उसको एक बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट असाइन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं बीडीआर। बीडीआर इज अ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होती है। इतनी बात हो गई सब। अभी मैं सिर्फ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर समझा रहा हूं। अब जो भी गोल्ड आता है वो एक फ्री जोन है, यहां पे कोई कस्टम्स का काम नहीं है, लेकिन कस्टम्स में रिकॉर्डिंग होती है जो भी गोल्ड आता है, क्योंकि नोटिंग होना ही है कौन सा गोल्ड आ रहा है। तो जैसे ही जो गोल्ड वॉल्ट में बना वो बीडीआर बनी और डिपॉजिटरी के पास जो डीमैट अकाउंट है, जिन्होंने गोल्ड दिया है, सप्लायर जो है, उनके डीमैट अकाउंट में जमा हो गया। मान लीजिए 100 किलो की गोल्ड बार आई तो 100 किलो के इक्विवेलेंट 100 बीडीआर बनी, 1-1 किलो की एक बीडीआर, और वो उनके खाते में रिफ्लेक्ट हो गई कि साहब उनके पास 100 किलो बीडीआर गोल्ड है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारे यहां जो भी गोल्ड है उस गोल्ड बार की एक स्पेसिफिक बीडीआर है, यानी कि अगर ये बीडीआर मेरे पास है तो इससे रिलेटेड एक गोल्ड बार है, वो बदलेगा नहीं। जब तक इस सिस्टम में ये गोल्ड बार है और ये बीडीआर है, ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। सो दैट मीन्स कभी आपने एज अ बायर, जब आप एज क्वालिफाइड ज्वेलर, में आगे की कहानी अभी बताऊंगा, जब आप मेरे पास गोल्ड लेने आएंगे और बीडीआर आपके खाते में जमा होगी तो आपको 100% ये तसल्ली होनी चाहिए कि साहब हाँ ये इस बीडीआर के अगेंस्ट ये वाली गोल्ड बार रखी है। फर्जी कागज वाला नहीं है, पेपर गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं है यहां। एवरीथिंग इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। इतनी बात हो गई? ओके। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, डोमेस्टिक एरिया में। अब सरकार ने कहा कि साहब ये एक्सचेंज बनेगा तो इस एक्सचेंज में कौन लोग आएंगे? इंटरनेशनल एरिया से कौन आएंगे उसको छोड़ देते हैं, हम लोग डोमेस्टिक की बात करते हैं। आज आपको पता है, जैसा कि पहले आपको हमारे आज के चेयरमैन साहब ने बताया भी है, कि यहां पे नॉमिनेटेड बैंक्स या नॉमिनेटेड एजेंसीज के द्वारा ही गोल्ड आता है इंडिया में, अनलेस कि कुछ एक्सपोर्टर्स भाई बहन हैं जिनको कुछ डायरेक्ट गोल्ड मंगाने की अनुमति है, उसको अभी बाद में बात करते हैं। तो जो भी गोल्ड यहां पे आएगा, आप अगर गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं, आपको गोल्ड चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं साहब गोल्ड दे दीजिए, तो बैंक मंगाता है गोल्ड और दे देता है। या पहले एमएमटीसी, एचएचईसी, पीईसी ये सब देते थे, अभी वो बंद हो गए, अभी सिर्फ डायमंड इंडिया लिमिटेड बचा है। गवर्नमेंट ने बाकी बंद कर दिए। बंद क्यों कर दिए? क्योंकि आईबीएक्स खुल गया है। तो नोटिफिकेशन डीजीएफटी का ये आया जनवरी में कि सर्टेन एंटिटीज जो कुछ क्राइटेरिया को मीट करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया? जो आईएफएससी रेगुलेटर ने बनाया है, एंड जो मीट करते हैं उनको क्या डिफाइन किया गया? क्वालिफाइड ज्वेलर। सो द क्वालिफाइड ज्वेलर सो डिफाइंड एंड सो अप्रूव्ड बाय आईएफएससीए आर अलाउड टू इंपोर्ट गोल्ड थ्रू आईआईबीएक्स। ये डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आया। इसका क्या मतलब है? पहली बार भारत के इतिहास में आपको गोल्ड डायरेक्ट इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई है, अगर आप क्वालिफाइड ज्वेलर की कंडीशंस को मीट करते हैं और रेगुलेटर कहता है ओके, आपने कंडीशंस मीट की, हमने वेरीफाई किया, डन, आपका नाम हमने दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि साहब ये सर्टिफिकेट लीजिए, आईआईबीएक्स से गोल्ड इंपोर्ट कर लीजिए। ये पहली बार किया गया है। तो सरकार ने क्या किया? एक लेयर हटा दी बीच में से। आप ये जानते हैं बात को कि जब भी आप कोई लेयर हटा देते हैं कॉस्ट कम हो जाती है। आप अगर रास्ते से लेंगे कोई भी चीज, या डायरेक्ट होलसेलर से लेंगे, या फिर आप खेत पे ही पहुंच जाते हैं, तो आपको कॉस्ट का डिफरेंशियल पता लगेगा। फिर आप कहेंगे हाँ साहब देयर इज अ लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड ऑल, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो क्वालिफाइड ज्वेलर्स आज की तारीख में हमारे पास क्या क्राइटेरिया, मैं छोटा छोटा बता देता हूं। पहली चीज, हो सकता है इससे आप सहमत ना हो, लेकिन अभी ऐसी है। पहली चीज की क्वालिफाइड ज्वेलर बनने के लिए आपकी नेटवर्थ कागज पे 25 करोड़ होनी चाहिए।
मैं दिल्ली में एक इवेंट में था, वहाँ 350 लोग थे, मैं वहाँ स्पीच दे रहा था। तो मैंने कहा साहब 25 करोड़ नेटवर्थ चाहिए ऑन पेपर। तो मैंने कहा साहब हम सब तुम और दिल्ली के सारे बड़े बड़े ज्वेलर बैठे थे, तो सब लोग तो होंगे, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा साहब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने कहा साहब वो लाल बत्ती बंद कर दो। अब बताओ साहब आपके पास 25 करोड़ की नेटवर्थ है कि नहीं। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि 25 करोड़ की नेटवर्थ ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, ड्यूली ऑडिटेड बाय ऑडिटर एंड सपोर्टेड बाय ऑल द व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, वो एक जरूरी चीज है। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि साहब लास्ट 3 इयर्स में आपका जो भी टर्नओवर है उसमें 90% गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आएंगे क्योंकि आपके यहाँ तो डायमंड भी है, तो वो समझना पड़ेगा कि उसमें मेरा सब डायमंड ज्यादा है गोल्ड कम है, या वील अंडरस्टैंड दैट, और नहीं होगा तो उसका कोई रास्ता निकालेंगे। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि साहब आप जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए। आप जिस जिस स्टेट में आपका है, ऑब्वियसली आज की तारीख में बिना जीएसटी के तो कुछ हो नहीं सकता। चौथी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। तो जो लोग इक्विटी मार्केट से जुड़े हैं, सेबी से जुड़े हैं, वो जानते हैं फिट एंड प्रॉपर क्या होता है। फिट एंड प्रॉपर में आपका ऐसा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर एनीवेयर। कहीं अगर आपकी कोई एंटिटी सेबी में कर रही है तो वहां पे आपको पेनल्टी वेनल्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा, आरबीआई में कहीं डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। प्लस बुलियन ट्रेड में आपका नाम कहीं खराब नहीं होना चाहिए। वो सब चीजें उसमें लिखी हुई हैं, अगर आप देखेंगे हमारे वेबसाइट को और आईएफएससी की वेबसाइट को, ये सारी चीजें वहां दी हुई हैं। उसका आइडिया ये है, लोग कहते हैं साहब ये फिट एंड प्रॉपर क्यों लगा दिया, मैं तो बैंक से ले ही रहा हूं। आप बैंक से जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार डायरेक्ट इंपोर्ट करने के लिए अनुमति दी गई है। तो जो नियम इसलिए बनाए गए कि आराम से चलेंगे, एक एक करके स्टेप चलेंगे, देखते हैं क्या होता है, किस तरह के लोग जुड़ते हैं, कि कोई इस तरह के लोग ना जुड़े आए कि जो ठीक नहीं है लेकिन पता लगा वो डायरेक्ट गोल्ड हमारे थ्रू लेने लग जाए। ये ऐसा सोच विचार है आज की तारीख में। अब इसके बाद हम आते हैं अगली चीज पे। तो एक बार जब क्वालिफाइड ज्वेलर के लिए आप तैयार हैं और एप्लीकेशन हैं, हमारे पास विपिन पांचाल जी बैठे हैं, अमित जुगनपुत्रा जी बैठे हैं, और मैं तो हूँ ही आपकी सेवा में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और गोल्ड अभी, सिल्वर बाद में के लिए आप क्वालिफाइड ज्वेलर की एप्लीकेशन दीजिए और रेगुलेटर से हम अप्रूवल लेके आपको वो सर्टिफिकेशन दे देंगे। पिछले फ्राइडे तक 75 क्वालिफाइड ज्वेलर हमारे पास ऑलरेडी अप्रूव, जो हमारी वेबसाइट पे नाम है। मुझे बताया गया है पिछले एक हफ्ते में था नहीं, लेकिन 5 ऑलरेडी और अप्रूव हो गए हैं। 80, 30 एप्लीकेशन और पेंडिंग है, 110। मेरे ख्याल से नंबर कम है, मिनिमम हमारे पास 1110 तो होने चाहिए। यहाँ पे सूरत से अभी मेरे पास सिर्फ 2 का नंबर है, सिर्फ 2 क्वालिफाइड ज्वेलर ऑनबोर्ड हुए हैं सूरत से। पर मेरा मानना है कि सूरत इटसेल्फ में भी बहुत पोटेंशियल है, कि इटसेल्फ सूरत में कम से कम 20 से 40 क्वालिफाइड ज्वेलर्स हमारे पास होने चाहिए जो हमसे डायरेक्ट गोल्ड ले सकते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गई क्वालिफाइड ज्वेलर की। आप में से सवाल ये आ सकता है कई लोगों का कि साहब हम 25 करोड़ का अभी नहीं है, तो साहब ये अभी की स्थिति है, उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे होता है, या आपकी इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाएंगे कि साहब नहीं, हमारे पास 25 से 20 करोड़ के बीच में 50 लोग और हैं, आप उसको 20 कर दीजिए, या 25 से 15 कर दीजिए, उसमें 100 लोग और जुड़े आएंगे। तो ये जैसा होगा उसको देखा जाएगा, उसके बारे में अभी हम देखेंगे और समझेंगे, और जैसा भी होगा इंडस्ट्री से चर्चा करके हमारी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन चला जाएगा, फिर जो भी डिसीजन रेगुलेटर का होगा। पर वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो रेगुलेटर का काम है, लेकिन अभी जितना है उतना तो शुरू हो, क्योंकि आज की तारीख में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। अगली चीज, अब सवाल अक्सर ये आता है कि साहब हम कैसे करेंगे ट्रेडिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले मई से, हम लोग तो ये जनवरी का नोटिफिकेशन था क्वालिफाइड ज्वेलर का, उसके बाद मई में ही है ना, अप्रैल में, मई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आया, जिसमें उन्होंने ये परमिट किया। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक आपको गोल्ड खरीदने की परमिशन नहीं थी बाहर से, गोल्ड इंपोर्ट करने की। अब आप इंपोर्ट करेंगे तो किस में करेंगे, डॉलर में इंपोर्ट करेंगे, तो आपको IIBX को डॉलर भेजना होगा गोल्ड खरीदने के लिए। जैसे आज आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे पास अप्रोच करेंगे, हम आपको एक प्रोफॉर्मा लेटर देंगे जिसको ED लेटर बोलते हैं, कि साहब आज आप 10 किलो लेना चाहते हैं तो 10 किलो के हिसाब से इतना डॉलर अंदाजन आप भेज दीजिए।
वो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक उस लेटर के बेसिस पे उतना डॉलर हमको भेज देगा, राइट। एक बार वो जब डॉलर हमारे पास आ गए, आज की तारीख में हमारे पास T+0 कॉन्ट्रैक्ट है। T+0 का मतलब क्या है? जैसे इक्विटी में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको T+2 पे डील होता है, आज के भाव पे तय हो गया, लेकिन 2 दिन बाद आपको, या आपने बेचा तो 2 दिन बाद पैसा मिला, और आपने खरीदा तो 2 दिन बाद शेयर मिला। यहां पे हम T+0 कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि जिस दिन आपने पैसा दिया और जिस दिन आपने गोल्ड दिया BDR के फॉर्म में, और वो अगर ट्रेड हो गया तो उस दिन आपके खाते में BDR आ जाएगी और जिसने बेचा है उसके पास डॉलर चला जाएगा। अब अगली तारीख एक इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको मैं। 29 जुलाई हमने बताया था, अगली तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को क्या हुआ साहब? 11 अक्टूबर को साहब ने आपको बताया कि हमारा छठा इंटरनेशनल एक्सचेंज है। अब मैं 6 को नंबर 1 बताता हूं कैसे। 11 अक्टूबर को सुनिएगा साहब, 11 अक्टूबर को सेलर ने 100 किलो का गोल्ड भेजा, यानी कि गोल्ड IIBX की कस्टम में एंट्री होती है, उस दिन आया। बायर था 77 किलो के इक्विवेलेंट, 77 किलो गोल्ड खरीदना था, तो उसने 77 किलो का इक्विवेलेंट का डॉलर उसी दिन भेजा। 100 किलो के गोल्ड की BDR बनी। हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन उस दिन हुआ। 77 किलो का गोल्ड का प्राइस आ गया, तो दोनों के जो IIBX है उसकी क्लियरिंग में इधर से BDR आ गई 100 किलो की, इधर से 77 किलो का डॉलर आ गया। तो हमने दोनों का ट्रेड इनेबल कर दिया कि अब आप खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। जो भी उनका आपस में प्राइस मैच हो गया, बिकॉज एनोनिमस है, आपको नहीं मालूम कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, तो प्राइस मैच हो गया। प्राइस मैच हो गया तो डील हो गई। हमारे यहाँ क्लियरिंग 6 बजे शुरू होती है। चूंकि आपको पता है डेली आपको ड्यूटी मालूम है, 15 दिन के लिए फिक्स हो जाती है। डॉलर रुपी का रेट 7वें दिन फिक्स होता है, जो लोग गोल्ड ट्रेड में हैं यहाँ पे। तो ड्यूटी मालूम थी, भाई साहब ने ड्यूटी भेज दी थी पहले ही कि साहब मेरे को आज ही चाहिए गोल्ड। और BDR 6 बजे के बाद जब क्लियरिंग का प्रोसेस हुआ, 8:30 तक BDR बायर के अकाउंट में आ गई सेलर के अकाउंट से, डॉलर शिफ्ट हो गए, BDR एक्सटिंग्विश हुई, वॉल्ट मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन गई, वॉल्ट मैनेजर से कस्टम्स के पास गई, कस्टम ने देखा हाँ ड्यूटी आ गई है, कस्टम ने गोल्ड रिलीज किया। 8:30 बजे पे गोल्ड रिलीज हो गया। तो सर ये छठा एक्सचेंज था ग्लोबली, लेकिन ये दुनिया का पहला एक्सचेंज बना जहां पे सेम डे गोल्ड फिजिकली डिलीवर हो गया। कहीं पे फिजिकली डिलीवर नहीं होता है, सेम डे। अब साहब लेकिन हम लोग खुश नहीं है इससे। ये दिल मांगे मोर, अब ये ऐड तो नहीं आता, लेकिन ये लाइन हमेशा दिल में रहती है, ये दिल मांगे मोर। तो हम लोगों ने क्या सोचा है, और उस पर काफी टेस्टिंग हो गई है। हम T+0 कॉन्ट्रैक्ट तो T+0 ही रहेगा, लेकिन हम T+0 को T+30 कर देंगे। अब आप कहेंगे ये 0 से 30 क्यों साहब? ये 30 डेज नहीं है, ये 30 मिनट्स है। इसमें क्या होने वाला है मैं बताता हूं आपको। 30 मिनट्स में जिस समय आपका ट्रेड होगा, हमने ये डिसाइड किया है कि 9 बजे जब ट्रेडिंग शुरू होगी और 5:30 जब खत्म होगी आज की तारीख में, बाद में हमारा 22 घंटे चलेगा एक्सचेंज, तो 9:30 पे पहली क्लियरिंग सेटलमेंट की फाइल चली जाएगी, अगली 10 बजे, फिर 10:30, फिर 11:30। हर आधे घंटे पे ट्रेडिंग की फाइल डिपॉजिटरी के पास चली जाएगी कि साहब इनका BDR रिलीज कर दो। क्योंकि सिंपल है, आपका पैसा मेरे पास है, सामने वाले का गोल्ड मेरे पास है, मुझे क्यों रुकना है शाम तक। ये काम की हमारी टेस्टिंग हो गई है। मैं इसलिए देखिए रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये मैंने नहीं डिलीवर किया तो आप आके मेरी गर्दन पकड़ लीजिए, ठीक है। तो T+30 पे टेस्टिंग हमारे यहाँ हो चुकी है एक्सचेंज में। T+30 की हमारी डिपॉजिटरी की टेस्टिंग फाइनल स्टेज पे है, वॉल्ट मैनेजर के साथ टेस्टिंग हो गई है। एक दिन जैसे ही मेरी IT टीम मुझे गो हेड देगी, हम लोग रेगुलेटर को हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा आप आइए, तैयार हो के आइए, क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं ना, कोई भी चीज वो ऐसे ही अप्रूव नहीं करते हैं। दे विल ऑल्सो टेस्ट आवर सिस्टम, चेक करेंगे हमने ठीक किया है कि नहीं किया, तो हमको अप्रूवल मिल जाएगा। फिर हम जो भी T+0 में ट्रेडिंग होगी वो हम एवरी 30 मिनट ट्रेड से निकालते रहेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई?
मेरे को मिल जाएगा आराम से, नहीं। देखिए, हम कैलकुलेट कर रहे थे 1 किलो का पैसा, एक दिन का, उसका ब्याज 1800 रुपए है। आप सब व्यापारी आदमी हैं साहब। जब अपनी स्पीच दे रहे थे, मैं गुजराती में बोल रहे थे, लेकिन मेरे को समझ आ रहा था, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि नफा नुकसान कैसे अपना उसको हरा करना है, कैसे व्यवसाय में प्रॉफिट लाना है, कैसे सबको साथ जुट के करना है। तो मैं आपका एक दिन क्यों डिले करूं? अगर मैं कर सकता हूं सेम डे तो, अगर नहीं कर सकता हूं तो ठीक है, तो वैसा ही है। लेकिन अगर कर सकता हूं तो क्यों ना मैं आपको गोल्ड सेम डे बाहर निकाल दूं। आपका क्या काम है, आप करो, मैं अपनी तरफ से तो दे दूं। अब आपने कहा साहब ये तो T+30 तो कर देंगे आप, ये तो टेक्निकल पॉइंट हुआ। मैंने तो सुबह रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए दिया बैंक को, ठीक है। अब मुझे कब मिलेगा उसके लिए देखिए, मेरा अगेन लाल बत्ती जल रही है, 4 घंटे का प्रॉमिस है। कैसे है मैं बताता हूं, सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आज की तारीख में 3 क्लियरिंग बैंक हैं, ICICI, HDFC और एक्सिस। बाकी 3-4 क्लियरिंग बैंक की एप्लीकेशन आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, इंडोसिंध भी है, और भी यस 1-2 बैंक और बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ये 3 बैंक जो हैं, इन्होंने बोला है कि साहब अगर मेरे जो खातेदार हैं उनका रुपये डॉलर मेरे पास से आएगा तो मैं 2 घंटे के अंदर स्विफ्ट मैसेज के बेसिस पे IFSC में आपको डॉलर क्रेडिट दे दूंगा। नहीं तो डॉलर कैसे होता है, नोस्ट्रो में दिखता है, रात को दिखता है, अगले दिन चेक करता है, फिर वो बताता है। आप भेज के देख लीजिए, आपको 2 दिन से पहले डॉलर का कन्वर्जन नहीं होगा। हमारे को 2 घंटे बोला है, और वी हैव टेस्टेड दिस। जो उस दिन 70 किलो वाला ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें भाई साहब 2 घंटे में उन्होंने मुझे क्रेडिट दे दिया था उनकी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और अगले 2 घंटे हमने जो जोड़े हैं वो ट्रेडिंग होना, आपके क्लियरिंग मेंबर को आपका इंस्ट्रक्शन देना, क्योंकि आप सब भी जगह फोन है, इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, ट्रेडिंग होना, फिर वहां से BDR का क्रेडिट होना, तो ये सबके लिए 2 घंटा। तो हमने बोला है कि अगर मान लीजिए आप सुबह 9 बजे डॉलर रुपये का इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को, 9 चलिए छोड़िए 10 बजे देते हैं, मतलब 9 बजे लोग आए नहीं आए, देर से जगह 10 बजे दिया, तो उसके 4 घंटे में यानी कि 2 बजे तक BDR आपके खाते में, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। और जब मैं T+30 कर दूंगा, आप चाहे ना चाहे, अगर ट्रेड हो गया तो उसके 30वें मिनट में तो क्रेडिट हो ही जाएगी। तो आइडिया ये है कि आपको गोल्ड सेम डे मिल जाए। आज की तारीख में भी जब हमने उस दिन डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद कई बार छोटी छोटी क्वांटिटी 1 किलो 2 किलो, क्योंकि वो हम एक टेस्ट एग्जाम्पल सबको बताना चाह रहे थे। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आज भी सेम डे पे लोग निकाल ले रहे हैं। लेकिन हमारा आइडिया है कि वो सिर्फ अहमदाबाद में ही ना मिले, क्या सूरत में वो सेम डे मिल सकता है? सूरत में वो सेम डे मिल सकता है ऑन दैट 4 आवर प्रॉमिस, कि मेरे यहाँ 4 घंटे में BDR टच हो गया, उसके बाद जो भी एजेंसी है जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, बाय रोड बाय ट्रेन जैसे भी आपके पास आया, 4 घंटे में चल के आपके पास आ गया, तो आपको सेम डे रात को शाम को मिल गया, ठीक है। अब साहब ये है गिफ्ट सिटी की बात। ऐसा ही हम 5 और SEZ में पहली स्टेज में करने जा रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट के पास गए कि साहब आप हमको और SEZs में IFSC के वॉल्ट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप पहले हमसे ब्यूरोक्रेसी से डील किए क्या? हम लोगों ने कहा नहीं सर, हमारी ये रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा देखिए आप अभी तो 5 लेके आए हैं, कल को आप फिर और 5 लेके आएंगे तो उसमें फिर 6 महीना जाएगा। तो गवर्नमेंट आज की तारीख में इतनी प्रोएक्टिव हो चुकी है, आप देखिए। और सिर्फ ऊपर के लेवल पे ही नहीं, नीचे जो काम कर रहे हैं ना वो सब भी इतने प्रोएक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जितने भी SEZ हैं उसका नोटिफिकेशन देते हैं कि आप किसी भी SEZ में IFSC का वॉल्ट खोल लीजिए। अब और क्या चाहिए आपको? अब सिर्फ हमको यह है कि अब उसके बाद से हमने कॉन्वर्सेशन शुरू करा कि वॉल्ट भी तो चाहिए वहां पे, और फिर वॉल्ट उन लोगों के चाहिए जिसको इंटरनेशनल सप्लायर का एग्रीमेंट है, जिनके साथ। मेरे आपके वॉल्ट में गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड उन वॉल्ट्स में आएगा जिनका इंटरनेशनल के साथ है, तो उनके साथ बातचीत चल रही है। ऑलरेडी हमें बताया गया कैलकाटा में एक है, वो वहां रिफर्बिशिंग चल रही है, और ये सारे SEZ में ही होंगे वॉल्ट, क्योंकि हमको फ्री जोन में रखना है। अब अगला सवाल ये भी आया कि साहब आप DTA एरिया में रख दीजिए, वहां पे उसको बना दीजिए, वो बाकी स्टेज है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, वो धीरे धीरे होंगी, लेकिन पहला स्टेप है SEZs जो आसपास हैं वहां पे IFSC वॉल्ट बन जाएगा, तो ताकि उस ज्योग्राफी के 200 किलोमीटर में भी 300 किलोमीटर में
4 घंटे के बाद गोल्ड पहुंच जाए तो उनको सेम डे गोल्ड मिल जाए। इतनी बात हो गई क्लियर? यहां तक किसी को कोई सवाल? ठीक है। एंड हाँ जी सर, ये गोल्ड हम लेते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका ड्यूटी वापस मिलता है कि? अभी मैं एक्सपोर्ट पे आता हूं, अभी मैं सिर्फ डोमेस्टिक बता था, फिर मैं अभी एक्सपोर्ट की पूरी कहानी सुनाता हूं। डोमेस्टिक तक का एनी क्वेश्चन यहां पे सर? एक क्वेश्चन है कि जो पेमेंट मस्ट बी मेड इन डॉलर्स ओनली। डॉलर्स, हाँ जी। नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द रूपी पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो वेदर इट विल बी मेड अवेलेबल इन रूपी आल्सो और नॉट? सर एज ऑफ नाउ नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, ये पहले डिस्कस हुई है, इस पे हमसे भी सवाल पूछा गया कई लोगों ने कई स्टेज पे। दिस इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। आज की तारीख में जहां तक मेरी जानकारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईएफएससी एरिया में रूपी ट्रेड अलाउ नहीं किया है। लेकिन सवाल सही है, ये कई हम लोगों से भी पूछा गया है, लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि आपको गोल्ड रुपए पे कौन देना चाहेगा? आपको गोल्ड रुपए पे वही देना चाहेगा जो उस रुपए से इंडिया से कोई चीज इंपोर्ट कर सकता है, तभी है, अदरवाइज। पर दैट इज द गोल, वो एक हमारा गोल है, वो एक हमारा लक्ष्य है जिसमें हमें काम करना चाहिए और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर एक क्वेश्चन ये ऐसा है कि अपने बैंक पे अगर बात करते हैं ना तो बोलते हैं कि एडवांस इंपोर्ट पेमेंट के ऊपर गोल्ड में रिस्ट्रिक्टेड है, तो अपनी कुछ बैंकों के आपने जो बताया एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को पता ही नहीं है कि भाई एक्चुअली अप्रूव्ड है कि आप उसका पेमेंट आप ओवरसीज का कर पाओगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરનો એક સેશન રાખેલો છે, એટલે સાહેબની એક સ્પીચ પતી જાય છે પછી આપણે બધા ક્વેશ્ચન આન્સરનો સેશન એક લીધે सर ने पूछा इसके लिए कैसे, सर ने अलाउ किया तो पूछा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं क्योंकि अभी तक मैंने कहा कि यहां तक आपके जो सवाल हैं वो कर लें, फिर आगे मैं बताता हूँ। इसमें सिंपल है, देखिए मुझे पता है सूरत के एक बैंक ने मना कर दिया था और उसी की अहमदाबाद ब्रांच ने रेमिट कर दिया डॉलर, ठीक है ना। तो अब देखिए साहब, ये क्या है ना, कितनी सारी ब्रांचें इग्नोरेंट हैं। आपको फिडाई पता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिडाई में जब मुझे पता लगा तो मैं फिडाई के चीफ के पास गया, तो मैंने कहा साहब ऐसा करते हैं, आपकी एडी बैंक सारे आप कंट्रोलर है उसके, कंट्रोलर मतलब यू आर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल एडी बैंक्स। आरबीआई जब आपको एडी बैंक का लाइसेंस देती है तो कहती है पहले फिडाई का मेंबर बन जाओ, तो फिडाई मेरे को बैंक चेंज करना पड़ा फिर। हाँ, तो फिडाई का मेंबर बन जाओ, तो फिडाई का मेंबर बन गया। फिडाई के थ्रू मैंने फिर एक पूरी वेबिनार करी जिसमें 111 बैंक वाले लोग मौजूद थे, जिसमें मैंने सब चीज समझाई एंड दे वर वेरी क्लियरली टोल्ड कि क्या चीज क्या है। देखिए साहब, ये मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन है बैंक को। मैं कौन होता हूं? आपको अपने रेगुलेटर के तो इंस्ट्रक्शन मानने ही है, वो तो कागज पे लिखा हुआ है, कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि रेगुलेटर ने परमिट किया है, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम आगे आते हैं कि क्या क्या चीजें और परमिट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पहली चीज तो ये परमिट कर दी, दूसरी चीज उन्होंने परमिट करी कि इंडियन बैंक्स, मुझे बता दीजिएगा सबका पूछना है, हाँ, इंडियन बैंक्स प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग मेंबर होता है, फिर क्लियरिंग मेंबर होता है और फिर क्लियरिंग बैंक होता है। क्लियरिंग बैंक तो हम अपॉइंट करते हैं, क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं, उसके लिए आरबीआई का इंस्ट्रक्शन आ गई है। आज की तारीख में आईसीआईसीआई बन चुका है, एचडीएफसी को अप्रूवल मिल गई है आरबीआई की, वो प्रक्रिया चालू है और बाकी भी कुछ और बैंक्स क्यू में लगे हैं। तो क्लियरिंग मेंबर परमिट हो गया है, सेकेंड स्टेप बाय आरबीआई। थर्ड स्टेप ऑफ आरबीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने ये इंस्ट्रक्शन दिए, 10 दिन पुरानी बात है, कि साहब आईएफएससी के अंदर जितने भी इंडियन बैंक हैं, जो भी चीज आरबीआई ने नहीं परमिट की है लेकिन आईएफएससी ने परमिट की है, तो वो बैंक्स अपने बोर्ड से पूछ के कर सकते हैं। पहले ये आईएफएससी के लिए सुविधा नहीं थी, वो फॉरेन टेरिटरीज के लिए सुविधा थी। इसका मतलब यह है कि अब मेरे हिसाब से, अभी समझेंगे, इंडियन बैंक जो वहां पे है वो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर भी बन सकते हैं। तो दैट मीन्स आपका जो भी बैंक है, अगर वो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया तो आप उसी के थ्रू अपना काम कर लीजिए, वो डॉलर सीधा वहीं से वहीं पहुंच जाएगा, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के स्पीच आई एमपीसी की, थोड़ा सा मैं ड्रामेटाइज करता हूं।
लंदन में सुबह के 4:30 पौने 5 बजे थे, फोन बजा, सडनली हड़बड़ा के नींद खुली तो CNBC से फोन था। तो मैडम थी जो बुलियन कमोडिटीज वगैरह को हैंडल करती हैं, तो मैंने उठा के मैंने कहा सडनली, मैंने कहा इस टाइम क्यों आओगे, मैं फोन किया। उन्होंने कहा अच्छा मिस्टर गौतम, ये अभी जो कमेंट आया है ये आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में। मैं सॉरी मैं लंदन में सो रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। देन शी सेड नहीं अभी मैं भेजती हूँ आपको, रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने कुछ अभी गोल्ड हेजिंग के ऊपर कुछ बोला है, आप जरा पढ़िए और फिर और आप जग ही गए हैं तो इंटरव्यू भी दे दीजिए। मैंने कहा सॉरी ओके, मैंने कहा थोड़ा टाइम दीजिए, आधा पौन घंटे का मैं पढ़ लेता हूँ क्या है और ऑडियो देते हैं, ठीक है। तो फिर सुबह करीब वहाँ के टाइम के हिसाब से 5:40 पे मैं इंटरव्यू दिया, CNBC में है वो ट्विटर पे। उसके बाद उनका देखा देखी, फिर CNBC आवाज वो भी मैडम ने लिया, फिर जी बिजनेस, फिर ET नाउ सबने लिया। तो उसमें बताता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट क्या अप्रूवल दिया है। मतलब आप देखिए गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक इंडिया साथ साथ चल रहे हैं, कहां पे पहुंच रहे हैं। अब आप लोगों को जुड़ना है, आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि साहब ये कहीं और कहानी पहुंच गई। उन्होंने क्या कहा है कि रेजिडेंट एंटिटीज, दैट मीन्स रेजिडेंट एंटिटीज DT एरिया में गोल्ड प्राइस रिस्क को IFSC के एक्सचेंजेस में हेज कर सकते हैं। ये कभी परमिट नहीं किया गया था। पहले तो डॉलर भेजना नहीं परमिट किया गया था वो, अभी तो ये हेजिंग परमिट कर दिया गया। इसका सर्कुलर आने दीजिएगा, ये तो गवर्नर साहब की स्पीच है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसका मतलब आज की तारीख में आप जो गोल्ड की हेजिंग करते हैं वो रुपये में MCX पे करते हैं। आज आप कल से जब भी ये सर्कुलर आ जाएगा और हम रेडी हो जाएंगे, तब आप US डॉलर में आउटसाइड इंडिया, दैट इज फ्रॉम IIBX, आप अपना गोल्ड प्राइस की रिस्क को खुद ही हेज कर लेंगे XAU USD में, XAU गोल्ड USD में, XAU USD में। तो हमारे पास से गोल्ड फ्यूचर्स लॉन्च हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए आपने, अब आता हूं कि इसका यूज कैसे करेंगे। आपके पास अपना जो भी एक्सपोजर होगा उसके अगेंस्ट आप यहां से हेज कर पाएंगे एक्सचेंज के थ्रू। उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसी महीने हम लोग गोल्ड मेटल लोन रेगुलेटर हमारे जो हैं IFSCA, उनका कॉन्सेप्ट पेपर आने वाला है इस महीने, नहीं तो आ जाएगा, चल रही उस पर चर्चा। गोल्ड मेटल लोन, आप लोग गोल्ड मेटल लोन भी एक्सचेंज के थ्रू ले पाएंगे 90 दिन, 180 दिन, और अगर एक्सपोर्टर हैं तो 270 दिन। तीसरी चीज अब जो बताई, गोल्ड फ्यूचर्स, गोल्ड ऑप्शन, वो भी आप कर पाएंगे। आप कितने तैयार हैं उसके लिए वो आपको देखना है, लेकिन ये चीजें सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अब आता हूं मैं, इतना DTA का एरिया कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट्स के लिए अगर आप SEZ में हैं और क्वालिफाइड ज्वेलर की कंडीशंस मीट करते हैं तो SEZ टू SEZ इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, ऐसा मुझे बातचीत में डेवलपमेंट कमिश्नर और कस्टम्स के थ्रू पता लगा है, और जो हमारा भी। सेकंड पॉइंट, अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन है, दैट मीन्स अगर आप SEZ में नहीं हैं और बाहर हैं और एडवांस ऑथराइजेशन है आपके पास DGFT का, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि एडवांस ऑथराइजेशन हमारी कस्टम्स को देके आप IIBX के थ्रू गोल्ड ले लीजिए। तीसरा हमने क्या बोला कि अगर आपके पास ना तो एडवांस ऑथराइजेशन है, ना आप SEZ में है, लेकिन आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो आप बैंक गारंटी देके कस्टम्स को गोल्ड हमसे ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, यानी कि एडवांस ऑथराइजेशन और ये बैंक गारंटी देने के लिए हमको आइस गेट की जरूरत है। तो जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं वो आइस गेट में रजिस्टर होते हैं सब। आइस गेट पे ये अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए थे पिछले फ्राइडे, डॉक्टर PK मिश्रा, ही केम अलॉन्ग विद सेक्रेटरी DEA। उससे पहले कॉमर्स सेक्रेटरी आए थे, उससे पहले पीयूष गोयल जी आए थे, मोदी जी के बाद से सब आ चुके हैं, और ये लोग एक्सचेंज में आए थे। गोयल साहब तो IFSC में आए थे, वहां हम लोगों ने उनको प्रेजेंटेशन दिया था। तो उसमें ये बात सबको क्लियर है और ये इंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं। और पिछले हफ्ते उन लोगों के जाने के बाद गिफ्ट में आइस गेट की IT टीम बैठ गई आगे इसको करने के लिए। तो एक बार जब ये आइस गेट जारी हो जाएगा तो ये एक्सपोर्ट वाली सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम अटकी हुई है कि क्वालिफाइड ज्वेलर, बहुत से लोग कहेंगे साहब हमारी 25 करोड़ की नेटवर्क नहीं है, हमारा छोटा है। उसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडस्ट्री एसोसिएशन भी ट्राई करें, हम लोग भी ट्राई करेंगे। एक बार ये आइस गेट लग जाए, आइस गेट के लिए भी आप थोड़ा पुश करिए, हम भी पुश कर रहे हैं। आइस गेट हो जाए तो उसके बाद क्वालिफाइड ज्वेलर में फॉर द एक्सपोर्टर्स क्या चेंजेस चाहिए, तो एक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों की तरफ से भी जा सकता है और हम लोग भी साथ में हैं।
अब एक और पॉइंट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिया यूएई सेपा, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सेपा इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। इंडिया ने यूएई के साथ एक सेपा साइन किया है जिसके तहत सालाना 120 टन गोल्ड 1% ड्यूटी कंसेशन पे आएगा। यानी कि इस समय गोल्ड की ड्यूटी 15% है। मैं ये डोमेस्टिक एरिया वालों की बात कर, एक्सपोर्टर्स के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनको 14% में मिलेगी ड्यूटी। सेपा के लिए भी हमारा एक्सचेंज इनेबल्ड है। हमने यूएई गुड डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है 9951 kg का। अभी हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट है, 9951 kg LBMA, 999 100 ग्राम LBMA एंड यूएई गुड डिलीवरी 9951 kg। यूएई गुड डिलीवरी हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है सेपा के लिए। जैसे ही आइस गेट लग जाएगा, क्योंकि सेपा का जो कंप्लायंस है वो आइस गेट में है, तो आप अगर टीआरक्यू है आपके पास, डीजीएफटी ने दिया हुआ है टैरिफ रेट कोटा 1% ड्यूटी कम पे इंपोर्ट करने के लिए, तो आप वो गोल्ड मेरे यहां से ले सकते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें देखिए हम लोग ने कर ली हैं। अब एक ही चीज रह गई है कि आपको आना है। पंगत लगी हुई है, खाना लगा हुआ है, तो आप नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो प्लीज आइए, आपका स्वागत है। और कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं रेडी हूं। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, आप कहें तो खड़े होकर आंसर दे दूं, जैसा भी। Thank you very much, Mr. Gautam. The way which you delivered your knowledge, the way, the harmony you maintained, and the detail you given to our jewelry entrepreneurs is really enlightened to all of us. Thank you very much, sir. Yes, please, round of applause for him. जो एनर्जी उसने दिखाई, इवन जेटलैग के थकावट के बावजूद जो एनर्जी से और जो इंटरेस्टिंग वे से उन्होंने बातें कही, हमको शायद ज़्यादा कुछ उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके आगे का दौर आप लोगों के हाथ में मैं देता हूँ। और अपने मिस्टर नीलेश लगरिया, चेयरमैन ऑफ इंडियन बुलियन ज्वेलरी कमिटी, रिक्वेस्ट नीलेश भाई કે તમે હવે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન કન્ડક્ટ કરો। આપને જે કંઈ ક્વેશ્ચન હોય એ સાહેબ એ બેઠેલા છે, હાથ જો કરશો એટલે માઇક ક્યાં તમારી પાસે આવી જશે। નમસ્કાર મિત્રો, ખાસ તો 2 મિનિટ હું લઈશ કે આપણે સૌપ્રથમ તો રમેશભાઈ વઘાસિયા, ભાવેશભાઈ ટેલર, તેમજ ભાવેશભાઈ ગઢિયા, નિનેશભાઈ પચ્ચીકર અને આપણા ચીફ ગેસ્ટ એવા શ્રી અશોક ગૌતમજી અને અમારા ખાસ લોકલાડીલા પ્રેસિડેન્ટ એવા પ્રતાપભાઈ જીરા, સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આપ સૌ જે આપનો કિંમતી સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા એ બદલ આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ એક વસ્તુ એ કહેવાની કે જે અશોક ગૌતમજીએ આપણને કીધું કે દરેક કાર્યમાં એક ઈચ્છા શક્તિ જોઈએ. ઈચ્છા શક્તિ હોય આપણી પાસે તો આપણે કોઈ પણ અઘરામાં અઘરું કાર્ય કરી શકીએ છીએ. તો ઈચ્છા શક્તિ હોવી જોઈએ. જેમ આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રીની એવી ઈચ્છા શક્તિ છે કે $5 ટ્રિલિયન આપણી ઇકોનોમી જાય તો એમાં આપણે બધા સહભાગી થશું. એની ઘણા બધા સપનાઓ છે. એમાંનું એક સપનું છે આ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ, જે 6થા નંબરે છે પણ આપણે પહેલા નંબરે લાવવાનું છે. એવું આ એક્સચેન્જ આપણે બનાવવાનું છે. તો એમાં સૌનો સહકાર જોશે. અને એમણે ઘણી બધી વિસ્તૃત માહિતી આપી ને બહુ સરળતાથી સમજાય એવી રીતે વાત કરી. છતાં આપણા કોઈને પણ કોઈ એવો પ્રશ્ન રહી જતો હોય કે જે આપણને સમજ ન પડ્યો હોય તો આપણે એમને પૂછી શકીએ છીએ ને અમે પણ અને એ પણ જવાબ આપવા માટે તત્પર છે. તો એવું કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ જણાવી શકો છો. છે કોઈનો મિત્રનો પ્રશ્ન? આપણે એક્સપોર્ટ આપણે કોઈ હા હિરેનભાઈ કાનાણી, એમ ખુशी एंटरप्राइज मारो ज्वेलरी बिजनेस है सर। बराबर। अभी आपसे अगर हम गोल्ड खरीद सकते हैं और एक्सपोर्ट के लिए, तो मुझे वो अपना 25 करोड़ वाला जो एरिया है वो अपने को करना है। ऐसे भी खरीद सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए
सॉरी, आज की तारीख में जो एक्सचेंज से जुड़ेंगे लोग, उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें क्वालिफाइड ज्वेलर में नेटवर्थ 25 करोड़ है। चाहे आप डोमेस्टिक यूज के लिए गोल्ड ले रहे हैं या आप एज एन एक्सपोर्टर गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, एक्सपोर्टर्स को बीच में लास्ट 3-4 महीने में काफी तकलीफ आ रही है। तो एक सवाल बनता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, क्या उनके लिए कोई और रास्ता निकाला जा सकता है? क्या सिर्फ एक्सपोर्टर्स भाई बहनों के लिए कोई एक रिलैक्सेशन करके एक नया कैटेगरी खड़ा किया जा सकता है? एक सही सवाल है, उस पर काम किया जा सकता है। सजेशन मैं देख के जाऊंगा साहब को, ताकि एसोसिएशन की तरफ से भी उसको, अगर अपना इनका बोर्ड अप्रूव करता है तो आगे बढ़ा सकते हैं। वी कैन हैव दैट डिस्कशन। सभी एक्सपो ज्वेलरी एसोसिएशन के मेंबर को भी बताता हूँ, तो लास्ट 3 महीने से हमको गोल्ड इंडिया और जो हमारा बैंक अकाउंट है वहां से गोल्ड मिला नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। ऑलरेडी मैंने 30 करोड़ का ड्यूटी तो ऑलरेडी जाने दिया, क्योंकि मेरा यूएस का बिजनेस है, अभी क्रिसमस चल रही है, तो अभी मुझे ऑर्डर था देना का ही था, लेकिन 3 महीने से मुझे बताया जा रहा है कि गोल्ड है ही नहीं। तो हम क्या करें? एक्सपोर्टर क्या कर सकते? हम जीजीपीसी के पास गए तो उसने हमको ऐसा बताया कि आप मार्केट से परचेज करो और उसमें से लिख के दो कि भाई ये गोल्ड है वो ड्यूटी पे है। तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है, बोलते कि हम बिल देंगे लेकिन हम आपको ऐसे लिख के नहीं देंगे कि उसका ड्यूटी पे है। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसका ड्यूटी पे है? तो लास्ट 3 महीने से, और गोल्ड इंडिया और जो भी का सिस्टम है वो फोन से बुकिंग का है, ईमेल से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में उसके पास गोल्ड आया नहीं है, गोल्ड आया है, लेकिन जिसके उसके साथ संबंध रखते हैं, जिसकी पहचान है, उसको गोल्ड मिलता है, हमको नहीं मिलता है। सर मैं एक अब देखिए सर, ताली जवाब पे भी बचाइएगा। आपकी बात सही है, और ये मैंने जैसा आपको कहा कि जब हम लोग ने शुरू किया और हमने इमीडिएटली ये प्रॉब्लम एरिया समझा कि एक्सपोर्टर्स को गोल्ड मिलना है और एक्सपोर्टर्स को गोल्ड IIBX के थ्रू अवेलेबल होना है। सिंपल सी बात है। मैंने शायद वो 3 वर्ड बोले नहीं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वो बोलता हूँ। पहली चीज ट्रांसपेरेंसी। IIBX पे आपको जो प्राइस दिख रहा है वही प्राइस है। नंबर 2, डेमोक्रेटिक वे ऑफ बाइंग। दैट मीन्स अगर वो प्राइस 100 किलो तक के लिए वैलिड है तो ऐसा नहीं कि जो 100 किलो खरीद रहा है वो उसके लिए है। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो भी मिलेगा उस प्राइस पे, 10 किलो भी उस प्राइस पे मिलेगा, और अगर मान लीजिए 100 ग्राम वाले कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे 100 ग्राम की एक बार भी मिलेगी आपको उस प्राइस पे। डेमोक्रेटिक वे। तीसरी चीज हम बोल रहे हैं ईज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन योर डेस्कटॉप। एक बार आपने डॉलर भेज दिया, आपको जो प्राइस दिख रहा है आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है कि साहब ये इतने पे मैंने उठा लिया, गोल्ड आपको मिल जाएगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज के साथ जुड़े, और जितने ज्यादा बाय साइड पे आएंगे उतनी ज्यादा सेल साइड पे आएंगे, और जब बाय साइड और सेल साइड ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो साहब प्राइस और नैरो होगा और बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। दिस इज व्हाट इज द गोल, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच में यही लिखा है कि वी वांट टू बी फर्स्ट द प्राइस इन्फ्लुएंसर्स, टुमारो वी वांट टू बी द प्राइस सेटर्स। प्राइस सेटर अभी छोड़ दीजिए, प्राइस इन्फ्लुएंसर तो बने। वो कब बनेगा? जब 800 टन के लोग वहां बाय कर रहे हैं। अभी वहां 800 टन की जगह वहां पे सिर्फ 8 किलो के बायर नहीं खड़े हैं, तो कैसे प्राइस इन्फ्लुएंसर होगा? अभी सर, हाँ बोलिए। अभी सर क्या है कि ट्रांजेक्शन ताली बजा देना। अभी क्या है कि ट्रांजेक्शन तो हमारा है 40 अपने 25 करोड़ के ऊपर का, लेकिन गोल्ड का 90% जो आप बताया कि 90% गोल्ड एक्सपोर्ट होना है, तो गोल्ड का जो वैल्यू है वो 90% तक नहीं होता है। समझो मेरा समझो 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, 60 करोड़ का ट्रांजेक्शन, लेकिन डायमंड का वैल्यू 60% रहता है ज्वेलरी में, और 40% गोल्ड का वैल्यू रहता है। सर आपने अगर जब सुना हो, मैंने स्पीच में कहा था कि आप जैसे एंटिटीज के लिए वील हैव टू फिगर आउट अभी उसको कैसे उसको किया जाए। और मेरा एक मानना है, देखिए इस तरह की जो भी तकलीफ है ना, आपने जैसे ही देखा कि ये 25 करोड़ है, देन दैट प्रेशर ऑल्सो शुड कम फ्रॉम एसोसिएशंस। देखिए हम देखिए हम एक रेगुलेटेड एंटिटी है, हम जो और रेगुलेटर के साथ बात भी करते हैं, पर रेगुलेटर का भी कहना सही है। वो कहते हैं साहब अभी तो 80 लोग जुड़ा है, आप लाइए। तो आप क्या सोचते हैं कि 25 करोड़ से ऊपर कहीं 80 लोग ही है पूरे हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं है ना। उनको तो जोड़िए, उनको तो दिखाइए वैल्यू। फिर मैं कब मना कर रहा हूं? मैं उसके बाद अगला स्टेप भी लेता हूं।
और अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्टर्स एक सब कैटेगरी बनाई जाए तो उसके लिए जरूर देखा जा सकता है कि उसके लिए क्या डिफाइन किया जाए। उसके लिए हमारी बात अलग से चल रही है जो मैं यहाँ नहीं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको एसोसिएशन के थ्रू उसको आगे लेके। अभी एसोसिएशन का बता रहा हूँ, आपको तो मालूम है कि जो गोल्ड इंडिया और सब जो अथॉरिटीज के पास हम गोल्ड लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, बराबर, तो आपको तो मालूम है कि वो फोन से बुकिंग करते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्यों भी आज के मोदी सरकार में, मोदी सरकार सब पारदर्शक करते हैं, तो मेल से क्यों बुकिंग नहीं होता है, फोन से बुकिंग करना पड़ता है? सर हो गया ना IBX पारदर्शी। नहीं, आपका नहीं, अभी चल रहा है बैंकिंग वाला। आपका बात सही है, लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी में ही मानती है और इसीलिए वो इतनी आगे बढ़ रही है। और IIBX भी वही है। जैसे हम लोग कई सारी नदियां होती है, अलग अलग नदियों से आप पानी लेते हैं, ये मोदी सरकार ऐसा चलाना चाहती है कि एक ही पाइपलाइन में सब जो नदी का पानी एक ही जगह से जाएगा, लेकिन जब हम उनसे जुड़ेंगे तो ये शक्य होगा। अभी ये पहला स्टेज है। अभी तो समझो कि ये IMF भी ला रहे पारदर्शिता, तो अभी तक तो डायमंड बिजनेस चल रहा है, ज्वेलरी एसोसिएशन भी है, तो उसको भी मालूम है कि बुकिंग हो रहा है वो फोन से हो रहा है, मेल से नहीं हो रहा है। तो क्यों मेल से नहीं किया जाता? क्योंकि मेल समझो તમારે ફેક્ટરી છે ને, તમારે ફેક્ટરી છે, તો ફેક્ટરીના એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ કોણ છે? આપણે વિજયભાઈ. તો તમે એમને કહો, કીધું મેં, બરોબર, એમને તમે કહો કે અમે જે પ્રેસિડેન્ટ છીએ રિટેલ અને હોલસેલ એનો એક કાંઈ પણ મુદ્દો હોય ને તો અમે વધી એક કલાકમાં અમે સોલ્યુશન કરી દઈએ છીએ. તમારો પ્રશ્ન 100% સાચો હશે, પણ તમે છે ને તમારા પ્રેસિડેન્ટ થ્રુ એસોસિએશનને જાણ કરો. એના પ્રેસિડેન્ટ છે, એ અમારો સપોર્ટની જરૂર હોય તો અમે એની સાથે રહેવી. આનો નિર્ણય તાત્કાલિક કઈ રીતે નીકળે એનો અમે તમને સપોર્ટ કરીએ. કદાચ અહીંયા ગાંધીનગર હોય કે દિલ્હી હોય, તમે સમજ્યા ને? એટલે તમે જે એસોસિએશનથી જે આ લાગુ પડે, દાખલા કે હું અત્યારે વાત કરું તો રિટેલ ને હોલસેલ અમને લાગુ નથી પડતું, અમને નથી લાગુ પડતું, તમારે 100% લાગુ પડે. પણ તમે છે ને એસોસિએશન થ્રુ જાઓ, કારણ કે તમે મને વાત કરી બરોબર છે, હું તમારા જંતીભાઈ સાવલિયા નહીં લાગે ને આમાં, એટલે તમારા જે પ્રેસિડેન્ટ છે એને તમે મને કયો ફોન કરો, અથવા તમે મને નંબર આપો. 3 મહિના પહેલા પેપરમાં બી આવી ગયું કે ગોલ્ડ પાસે ગોલ્ડ નથી. 3-4 મહિના પહેલા તમારી વાત સાચી છે, પણ અમારે છે ને અમારે જેટલો લાગુ પડતો એટલો જ અમે લઈ એનો, બરોબર. પણ તમારા પ્રેસિડેન્ટને કયો મને વાત કરે, અથવા તમે મને નંબર આપો, એનો અમે સાથે મળીને તમે તમારો પ્રશ્ન સોલ્વ કરી દઈએ. હા, એટલે પ્રતાપભાઈની વાત સાચી છે. તમે રાઈટ ચેનલમાં જાઓ, તમારા પ્રેસિડેન્ટ પાસે જાઓ અને ચેમ્બરને પણ લખો. સાહેબ, હવે મને ના બધાને બધી ખબર જ છે, કસ્ટમની હેરાનગતિ કે ગોલ્ડ ઇન્ડિયાની હેરાનગતિ કે બેંકોની હેરાનગતિ, એની ઉપર કમ્પ્લેન કરશું એટલે ડબલ હેરાન કરશે. એમને સાંભળો, ના એવું વિચારી સાંભળો, એક મિનિટ તમે સાંભળો. મને પ્રેસિડેન્ટ બનાવી દો, તમારા પ્રેસિડેન્ટને કયો રાજીનામું આપી દે. તમને કોણ હેરાન કરે? બેઠો, ચાલો બનાવી દો, ચાલો. બીજું એક છે કે હંમેશા નેગેટિવ નહીં વિચારવાનું. જો ટ્રાન્સપરન્સી લાવવા માંગે છે, જે ખરાબ વસ્તુ છે એને સુધારવા માંગે છે ગવર્મેન્ટ પર, ગવર્મેન્ટને આપણે સપોર્ટ કરવો પડશે. હું છેલ્લા 4 મહિનાથી મેલ કરું છું કે તમે શા માટે બુકિંગ મેલથી નથી કરતા. સરે કીધું એમ કે ભાઈ જ્યારે એની પાસે કમ્પ્લેન આવી, એ લોકોએ સડનલી એમાં કોઈ પગલા લીધા છે ને છતાં જે એની પર કામ ચાલુ છે. તમે રૂબરૂ પર્સનલ મળ્યો, પ્રતાપભાઈને રૂબરૂ મળી અને સોલ્વ થયા. છેલ્લે પાછળ છેલ્લી લાઈન. मैं यशवंत सोनी बोलता हूँ सर. आज जो बात हुई उसमें मेरा एक सुझाव है कि जो टारगेट 25 करोड़ का है वो 10 करोड़ का किया जाए. इसमें बहुत से स्टाफ मिलेंगे. थैंक यू सर. दूसरी बात है, दूसरा कहना है मुझे. दूसरी बात है, આ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં આપણે બધાની રાય લઈ લઈએ, કારણ કે SGCCI આ બાબતમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરશે. હવે 10 કરોડની જે પ્રપોઝલ છે સાહેબની, એ 10 રાખવી કે એનાથી હજી ઓછી કરવી આપણી રજૂઆત. એટલે આપણે SGCCI માંથી નૈનેશભાઈ 5ની રજૂઆત કરવાની, પછી જે થાય આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, મોતને બાજશે તો તાવ આવશે. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે અશોક ગૌતમજીએ કીધું એમ કે ભાઈ ઘણાની નેટવર્ક વધારે હોય છે,
પણ પેપર પર નથી હોતી. તો હવેનો સમય એવો છે કે પેપર પર તમે જેટલું લાવશો ને એટલો આપણને ફાયદો છે આવતા સમયમાં. એટલે જેટલું એક નંબરમાં કામ થાય ને જેટલું કામ વધારીએ એક નંબરમાં એટલો આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને આપણા બિઝનેસને આપણને ફાયદો થશે. दोस्तों एक नानो सुझाव कहूँ, छोटा सा सुझाव है कि आप 5 करिए 10 करिए इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन 10 तो रखिए क्योंकि ये वॉल्यूम बड़ा है. एक 100 ग्राम भी लेंगे तो 5.5 लाख लगता है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है. अब तो आप जो भी कीजिए हमको कोई वांधा नहीं है, हमने जो बोलता है. दूसरी हमारी जो एक बात है कि अब जब ये बुलियन एक्सचेंज IFSC आ गई लिमिटेड, वो लिमिटेड है. आगे जो बैंक थ्रू गोल्ड आता था जाता है जो भी होता है वो अलग सिस्टम थी, अलग सिस्टम है. इससे मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या इससे कोई आम व्यापारी को या पब्लिक को कुछ फर्क पड़ेगा खर्चा में, आवक पे, जाने में? जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप थोड़ा सा, मैं कोशिश भी किया था कि सरल भाषा में बता पाऊँ. हमने ये भी बताया कि किस तरह से आपका वर्किंग कैपिटल वगैरह हम बचा पाएंगे. सबसे बड़ी चीज़ आप शायद समझ लेते तो अच्छा रहता. वो एक पॉइंट मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी. जैसा कुछ साहब ने बोला ना कि साहब फोन पे हमको क्या रेट मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी में आपको प्राइस दिख रहा है, वो ही एक सबसे बड़ा फायदा है. आपको समझ आ जाएगा. अभी मैं कहीं पे था, वो लोग कुछ बता रहे थे कि जो प्राइस है उसके ऊपर $14 देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है. यहाँ पे आपको जो प्राइस दिख रहा है उसी प्राइस पे आपको, ये सबसे बड़ा फायदा है आज की तारीख में, ट्रांसपेरेंसी. दूसरा, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं है. सबसे बड़ा फायदा ये. आपने पूरा ना छोटे वाले को क्या फायदा है, अभी तो खैर 25 करोड़ वाली बात है, मैं वहीं पे बोल रहा हूँ. 25 करोड़ 2.5 करोड़ भी उसी में है ना. तो 25 करोड़ की नेटवर्थ वाले को भी अगर 10 किलो लेना है और 2.5 करोड़ की नेटवर्थ वाले को भी 100 किलो या 1 टन उठाना है, अगर वो प्राइस अवेलेबल है तो उसको वो प्राइस मिल रहा है. ये बहुत बड़ा फायदा है. तीसरी चीज, आपको परेशान नहीं होना है. अगर आपने डॉलर भेज दिए तो आपके अपने डेस्कटॉप पे आप प्राइस हिट कर सकते हैं. अब आते हैं अगली चीज. आपने कहा साहब मैं अभी रुपया देता हूं, मुझे गोल्ड मिल जाता है, मुझे नहीं मालूम क्या रेट पे मिलता है. हो सकता है आपको सूट करता है तो आप ले लेते हैं. आपको यहाँ कंपैरिजन में चेक करना पड़ेगा. ये एक चैनल बना है. हमने तो बताया कि आपको ये बेनिफिट्स हैं. उसके बाद भी क्या होता है, हमने एक तरीके से हम अपना काम करते चले आ रहे हैं. हम कहते हैं हमें बदलना नहीं है. स्मार्टफोन जब आया उससे पहले दूसरे वाले फोन थे. अब ये स्मार्टफोन की जरूरत होगी किसी को नहीं पता था, लेकिन जब स्मार्टफोन आ गया तो सडनली लोगों को लगा अरे स्मार्टफोन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. सिमिलरली जब हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें आएंगी और ये सारी चीजें ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आपको अवेलेबल हो पाएंगी, तो आपको पता लगेगा इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं. अगला आपका जो सवाल मैं समझ पाया, जो आप रिलेटेड टू कॉस्ट बोल रहे थे शायद, कि मुझे रोकड़े में कितना फायदा होगा. पैसे की बात नहीं थी, पैसे की भी बात होती है साहब की. मेरे को अभी 52,000 रुपए का मिला है, एक्सचेंज पे 52,100 रुपए का मिल रहा है कि 51,900 रुपए का मिल रहा है. सही बात है ना. वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज में चला रहा हूँ, प्राइस मैं नहीं डिसाइड करता हूँ. उस समय बायर क्या बेचेगा, सेलर क्या बेचेगा. मैंने एक चीज और बोली कि जितने ज्यादा ज्यादा बायर और जितने ज्यादा ज्यादा सेलर जुड़ेंगे उतनी बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी. आज आप मान लीजिए, मैं नाम नहीं लेता हूं, आज आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बैंक से जुड़े हैं, उसको पता है कि साहब आप एक पर्टिकुलर, उन्होंने आपको कैटेगराइज कर रखा है, तो आप जब जाओगे वो आपको वही प्राइस कोट करेगा, जो भी उसको मिल रहा है उसके ऊपर उतना जोड़ के देगा. ठीक है ना. वो उसके हिसाब से है. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने ज्यादा लोग जुड़े आएंगे तो किसी को मालूम थोड़ी ना है कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है. 2.5 करोड़ की नेटवर्थ वाला भी खरीद रहा है उसी प्राइस पे. 25 करोड़ की नेटवर्थ वाला कल को शायद, जैसा साहब लोग आप लोग अप्रूव करा पाए, 10 करोड़ 5 करोड़ नेटवर्थ वाला भी खरीद पाएगा. तो ये एक एक्सचेंज में जैसे सिंपल सा है. आज आप इक्विटी खरीदने जाते हैं, अब बल्क डील कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है. जो सुबह रिपोर्ट होती है बल्क डील, उसका भी वेरिएशन लगा रखा है कि 5% या उससे ज्यादा ऊपर नीचे आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते. लेकिन आज की तारीख में किसी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी का आप 1 शेयर खरीदने जाएं या 100 खरीदने जाएं, तो अगर वो 100 शेयर अवेलेबल है उस प्राइस पे, तो वही प्राइस आपको मिलेगा, वही दूसरे को मिलेगा. यही बेनिफिट है. यही सब बेनिफिट्स हैं. ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेटिक वे, ईज ऑफ बिजनेस,
आपके सामने है, यही आपका है। प्लस हमने जो आपको बताया T+30 जो हम बोल रहे हैं, 4 घंटे में ₹1 के बाद BDR आपको देना चाह रहे हैं, जिससे हम आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को भी कम कर सकते हैं। अभी मैं एक्सपोर्टर्स का और बताता हूँ, कहते हैं साहब हम ऑर्डर देते हैं, हमारी बात होती है, तीसरे दिन आता है गोल्ड या चौथे दिन, हम कहते हैं भैया गोल्ड रखा है, अब ले जाओ। आज की तारीख में भी मेरे पास आज सुबह का स्टेटमेंट देख रहा था, 41 किलो गोल्ड अभी भी पड़ा है मेरे पास। अगर आप जुड़े हैं, आपके पास डॉलर पड़ी है और आइस गेट चल रहा है या आप SEZ में हैं, तो आप उठा लीजिए गोल्ड को। लेकिन कहने का मतलब ये कि जुड़ेंगे तब होगा ना ये सब। गोल्ड तो मेरे पास हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे सप्लायर रेडी हैं। वो कहते हैं साहब आप बताओ तो आपके पास कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो बेचारे परेशान है कि वो गोल्ड रख के बैठे हैं, कोई खरीद नहीं रहा। उनको भी ब्याज लग रहा है ना, 1800 रुपए किलो जो आपको लग रहा है वो 1800 रुपए किलो डॉलर टर्म में उनको भी लग रहा है, उनको भी लग रहा है। लेकिन उसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको इंटरनेशनल साइड तो बताई नहीं एक्सचेंज की। इंटरनेशनल साइड में बताऊंगा, इसमें आपके NRI भाई बंधु हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, BDR में इन्वेस्ट कराइए। BDR इज नथिंग बट डिजिटल गोल्ड बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। प्लीज हमारे यहाँ इसमें पूरा इंटरनेशनल का तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ डोमेस्टिक का बताया है। उसके लिए साहब एक बार फिर अच्छी सी बुलाएंगे, जब कम से कम मेरे पास 20 सूरत से आ जाएंगे QJ, फिर मैं आऊंगा और फिर मैं इंटरनेशनल के बारे में बताऊंगा। पूरी कहानी बतानी है। और वो कहाँ डोम में ले जाएंगे साहब, और डोम में करेंगे वो। मतलब કે આ છે ને એક શરૂઆત છે, આપણે જોડાશું જેમ જેમ ફાયદો તો છે જ ને, એમણે કીધું એમ ડેમોક્રેટિક વેવમાં આપણને ભાવમાં ટ્રાન્સપરન્સી મળશે। જે અત્યારે બધું આપણે જુદા જુદા ભાવ અને વધારે ડ્યુટી આ તે થાય છે એ નહીં થાય। અને ખાસ એમણે જે કીધું એમ કે ભાઈ ઘણા મેન્યુફેક્ચરની ફરિયાદ છે કે ભાઈ ટાઈમે ગોલ્ડ નથી પડતું, એની હિસાબે એમને મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી થઈ શકતું અને એક્સપોર્ટમાં એમને પેનલ્ટી લાગતી હોય છે, તો એનું સોલ્યુશન છે જ। પણ એ જેમ કહે છે એમ કે ભાઈ આપણે જોડાશું એમની જોડે તો જ થશે ને। જોડાવા માટે રસ્તો સરળ જ છે, એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ તમે આપણે કીધું એમ કે ચેમ્બર એની લીડ લેશે અને આપણે રજૂઆત કરશું કે ભાઈ આ જે 25 કરોડની નેટવર્ક છે અને આપણે થોડી નીચે કરે તો ઘણા બધા આપણા માટે જોડાઈ શકશે ને એની માટે આપણે બધા સક્ષમ છીએ જ। તો જેટલા વધારે જોડાશું એટલો આપણને વધારે ફાયદો થશે, એવું મારું માનવું છે। मेरा नाम एजाज मिर्जा है सर, मैं कलामंदी ज्वेलर्स कंपनी से हूँ और एक्चुअली मेरा 5 जुलाई से मेरे को क्वालिफाइड ज्वेलर हूँ मैं, 5 जुलाई से सर्टिफिकेट मिला है मेरे को। और मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने बताया कि UAE सेपा के अंदर तो मेरा 100 kg का उसके अंदर कोटा है। मैं एक्चुअली कम से कम पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ बैंक के माध्यम से कि एक्चुअली मेरे को कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कहीं आर्टिकल में पढ़ा था कि UAE सेपा का फर्स्ट प्रोक्यूरमेंट लेने वाला ओनली फॉर इंडिया के अंदर से ओनली द जो मालाबारी है, तो वो एक्चुअली सबसे पहले लगने वाला 275 लोगों पे एप्लीकेशन में अंदर से मेरे को 100 kg का कोटा मेरे को लगा था। बट मैंने बैंक के माध्यम से चेक किया तो बोले कि आपका कस्टम एक तो कहला क्लियर नहीं है, तो मैंने जो बैंक का मैंने ICC बैंक का IEC कोड यूज किया था वो मंगाने के लिए, तो मैंने बाद में पता चला कि एक TRQ कोटा का IIBX के थ्रू भी क्लियरिंग होता है। तो मैंने बैंक को बोला तो उन्होंने ऐसा बताया कि सिर्फ ओनली फॉर इंडिया के अंदर चेन्नई कस्टम ही ऐसा है कि जहां से वो गोल्ड क्लियर हो पाएगा। तो मैंने उनको बताया कि IIBX वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बोल नहीं आपके IEC में अहमदाबाद कोड ऑफ लिखा है कस्टम में। तो मैं फिजिकल कस्टम में 4 बार जाके आया, कौशल्या इंटरनेशनल जो CH उनको मिल के आया, बट कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं 6 महीने से 1% ड्यूटी बेनिफिट वाला माल ही नहीं ले पाया और 2 बार मैंने कोटा को एक्सटेंड करना पड़ा ऑनलाइन, जबकि वो डेडलाइन भी 30 नवंबर को खत्म हो गया और मैं 100 kg गोल्ड ले ही नहीं पाया। तो इसके लिए सर आपका क्या है कि मैं वो कैसे उसका बेनिफिट 1% का उठा पाता और IIBX के थ्रू कर पाता और वो कस्टम का क्लियरेंस भी इजी हो जाता। देखिए मैंने बताया था, शायद दोबारा से बता देता हूँ, सिंपल सी चीज है, मुझे एक ही चीज उसमें नहीं है मेरे पास, आइस गेट पे काम चल गया और मैं अगेन आपकी एसोसिएशन के चेंबर के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी प्रेशर लगाइए, पर उस पे काम चल रहा है। जिससे ही आइस गेट लग जाती है TRQ हमारे यहाँ इनेबल हो जाएगी। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि जिन लोगों को H1 फिर Q3 और अभी Q4 का जो TRQ मिला है उसमें अभी भी IIBX का नाम ड्रॉप डाउन में नहीं है। लेकिन DGFT ने हमको बोला है कि जिस दिन आपका आइस गेट लग जाएगा, एनीबडी फॉर एग्जाम्पल कला मंदिर अगर चाहेगा तो DGFT वहां इनेबल करेगा, आपके TRQ में आप वहां जाके स्विच कर सकते हैं IIBX का नाम, उसमें आप ही का अपना नाम आएगा, क्योंकि ये इसका नोटिफिकेशन आ चुकी है।
कि आप एक मिनट, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है वेयर यू विल बी द इंपोर्टर और आपका आईसी कोड और आपका नाम लिखा होगा उसमें। अगर आपका आईसी कोड और आपका नाम लिखा है इसका मतलब आप सिर्फ IBX से ले सकते हैं, देन यू आर द इंपोर्टर। ठीक है, इसके लिए DGFT ने बोला है जिस दिन आइस गेट लग गया उसके विद इन 4-5 डेज वो वहां पे एक बटन देंगे, आप अपना TRQ नंबर डालेंगे और आप बोलेंगे मुझे IBX के थ्रू लेना है, तो आपका रिवाइज TRQ आ जाएगा। मेरे पास गोल्ड आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं, आज की तारीख में चेन्नई से धड़ाधड़ क्लियर हो रहा है सेपा का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, मैंने उनके लिए उनको एक सुझाव भी दिया कि पोर्ट ऑफ क्लियरेंस आप चेन्नई रखो, बट अहमदाबाद उसका अब क्लियर वो कर दिया। पोर्ट ऑफ क्लियरेंस चेन्नई क्यों होना चाहिए? कोई भी पोर्ट क्लियर होना चाहिए, राइट, इज अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कस्टम को डायरेक्ट अप्रोच करो। सर विल हैंडल ना, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी हैंडलिंग तभी होगी जब मेरा आइस गेट लग जाएगा। आइस गेट पे काम चल रहा है, बड़े से इतने साहब जो हमारे यहाँ मैंने नाम लिया उनसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी में और कोई बंदे हैं नहीं। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, वो आके गए हैं, उसके बाद से काम इतना बढ़िया चालू हो गया। मैं और इससे ज्यादा हम देखिए, वी जस्ट ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। हमने पूरा सपोर्ट दिया है, हमारी टीम लगी हुई है साथ में, उनकी टीम आके डिस्कशन कर रही है और ये IT का प्रोसेस है, हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट की टॉप मिनिस्ट्री से लेके और टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेके सब लोग इस काम को में उनको मालूम है ये काम, और ये हो रहा है। मई से लेके दिसंबर आ गया ना सर। सर ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, भारत सरकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कमिटेड है कि 120 टन गोल्ड लेंगे। वो स्कीम बंद कर देगी गवर्नमेंट, खाली उनके लिए ओपन रखा हो तो। इसीलिए तो देखिए, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉब्लम एंड दे विल सॉर्ट इट आउट। और ये सिर्फ अगर एक्सपायर हो भी गया तो ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा, आपको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो, क्योंकि वो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मई से शुरू हो गया है। मई में अगर आप प्रोपोर्शनेट लीजिए तो 120 तो नहीं, कम से कम मतलब 10 टन महीने का हुआ। अगर मई लेते हैं तो 110 टन तो देना ही है। फिर भी जो कोटा बट रहा है, मैं बता दूं, H1 में 50 का था, Q3 में 30 का था, Q4 में 40 का था, गिनती 120 टन हो गई। तो यानी कि उतना गोल्ड तो आना ही है ना, आएगा। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे थ्रू आए। अगर आप माननीय पीयूष गोयल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जब वो हमारे यहाँ आए थे IFSC में, शाम को उन्होंने बोला था 100% मैं सेपा IBX के थ्रू दूंगा, बोल के गए हैं, उस पर अब काम चल रहा है। सी दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, मतलब मिनिस्टर लेवल से ऊपर और कौन है भाई, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी महकमा काम शुरू कर दिया है, ये काम तो पहले नहीं था। और आइस गेट लग जाएगा तो सिर्फ सेपा ही नहीं, एक्सपोर्टर्स भाई बंधुओं के लिए भी आई विल बी रेडी विद एडवांस ऑथराइजेशन एंड अदर थिंग, जिसपे सी सब चीज का एक ऐसा हो गया। अभी तो साहब, अभी तक तो IBX नाम की चिड़िया ही नहीं थी, अभी तो बन गया है। अब उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जा रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि कला मंदिर की तरह से यहाँ पे कम से कम और लोग आए। 20 नंबर होते ही मैं फिर आऊंगा साहब के साथ। सर एक्चुअली मैं भी ट्रेडिंग मेंबर हूँ अपना आनंद राठी के इसमें। अगर मेरे को डायरेक्ट अगर लेना हो तो मैं अभी समझो मेरे को $4-5 इसके ऊपर लग जाता है साहब। $4 जो है, आप देखिए, $4 पर किलो है, इट इज अ फ्यू सेंट्स। रूपी टर्म में कुछ नहीं है। प्लीज आप उसको, मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल। देखिए, वो जो सिस्टम क्रिएट किया गया था वो कुछ खास कैटेगरी के लिए क्रिएट किया है। LPTM का नहीं कर सकते? नहीं, आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ। बट आई एम सेइंग कि LPTM कैटेगरी कुछ खास बैंक्स और उन सब के लिए बनाई गई थी, उसको कुछ और सोच के बनाया गया था, ठीक है ना। वो कोई आप करना चाहते हैं तो बन सकता है, 1-2 लोगों ने कन्वर्ट कराया है अपना, वो आप देख लीजिए, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन सब ट्रांजेक्शन तो करिए। थैंक यू सर। एक एप्लीकेशन ऐसा कोई मिल सकता है कि कौन सा भी समझो मेरे को, ये बैठे हैं दोनों लोग, मीत और इनको पकड़ लीजिएगा, ये कल नहीं जा रहे हैं, मैं तो सुबह निकल जाऊंगा, इनको पकड़ के रखिएगा। मैं 999 मंगाता हूँ तो अवेलेबल होता ही नहीं है। सर 999 LBMA का जो है $12 प्लस पे आ रहा है इंडिया इसके में, लिए, ठीक है। जस्ट वेट, UAE गुड डिलीवरी का 999 का मैं अभी, आपने शायद आप फॉलो करते हैं मेरे को, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को, आपके हर इसमें होता हूँ मैं। लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं, बिल्कुल, ट्विटर पे फॉलो करते हैं। आपने मेरी फोटो देखी होगी विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ ट्रेड UAE डॉक्टर थानी के साथ। यस, मैं उनके साथ मीटिंग किया हूँ, वहां पे मेरी वन ऑफ द रिक्वेस्ट, उसके बाद उनको हमने दिया क्या क्या हो सकता है, जिसमें हमने फिर बाद में ये भी बताया कि साहब 999 UAE को इमीडिएटली ओके कर दीजिए। परसों मेरे पास मैसेज आया कि मिस्टर गौतम वेट हो रहा है, 999 UAE आते ही आपका घड़ा चालू हो जाएगा। बस बस बस।
थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन आप लीजिएगा बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंडिया में ये मत बताइएगा कि MCX पे रुपए में मिल रहा है सस्ता, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस હવે नहीं अब कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन चलो ले लिए। थैंक यू अशोक जी। हमारा इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से आपको तो खूब खूब धन्यवाद। और खासकर इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जब भी इसका SOP आया था तभी सुरेंद्र मेहता जी ने इसका सभी ज्वेलर्स के ऊपर फॉरवर्ड तो किया था। अभी ये चैम्बर में भी मैं बुलियन कमेटी का चेयरमैन हूँ। और जो आपने एकदम सरल भाषा में, मैंने तो SOP उसका पढ़ा है और उसका फॉलो भी किया है। और जो अपने ये UAE और शेफा की जो हमने उसके साथ में जो डीलिंग में जो दिक्कतें आ रही है, जो 1% का जो बेनिफिट ज्वेलर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो भी एक हकीकत है। और दूसरी बात अशोक जी कि जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो तो जो क्राइटेरिया में थोड़ी चेंजेस हम लोग करना चाहते हैं, हमारी इंडस्ट्री करना चाहती है कि हमारी इंडस्ट्री ये चाहती है कि उसमें जो भी चेंजेस ये 25 से लेके 5 तक करे या कुछ भी उसमें 90% हमारा जो गोल्ड का हमारा बुलियन का काम होना चाहिए, वो भी एक क्राइटेरिया है, उसमें भी हमारा चेंजेस होना चाहिए। तो हम ये चैम्बर के माध्यम से भी उनको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे एसोसिएशन जितने भी हमारे सूरत में एसोसिएशन है वो चैम्बर से कनेक्टेड है, तो वो चैम्बर के थ्रू ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप हमारा इधर एक दूसरा भी जो एक ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक्सपोर्ट का जो भी है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इधर हम चैम्बर्स में इश्यू करते हैं। तो कुछ ऐसा हो कि IIBX का जो भी अभी हम इधर मैं आपको इसका एक नंबर्स दे दूं कि इधर साउथ गुजरात में 3500 टोटल ज्वेलर्स है, उसमें से 20% इधर बुलियन के काम करने वाले हैं और सभी बाकी के जो है वो 25। आप जो बोलते हैं कि इधर से 20-25 नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे 50 से ऊपर जो ज्वेलर्स है वो IIBX में जुड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसमें हमको थोड़ा ये जो क्राइटेरिया का है वो तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और 90% जो बुलियन का जो काम है उसका भी हमको थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो जो मोदी जी ने ये जो हम देखते हैं कि मोदी जी जो स्वप्न दृष्टा है वो है, क्योंकि उन्होंने इधर डायमंड बुर्स का जो सपना देखा था वो हम लोग देख रहे हैं कि जो डायमंड बुर्स दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड बुर्स इधर सूरत में होने जा रहा है। और क्योंकि मोदी जी इधर गुजरात के हैं और गुजरात जो उन्होंने बोला था कि उनका जो नारियल फेंकेंगे तो गुजरात की तरफ ही आएंगे, और जो हमने अभी 56 का 156 उनका छाती कर दिया है तो हमारा तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे। थैंक यू, तो थैंक यू। फिर ये जो भी एक अशोक जी हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चैम्बर की माध्यम से अगर आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव इधर चैम्बर में कुछ भी रखेंगे, जो इधर जो भी ज्वेलर्स का कुछ भी दिक्कत आती है तो हम चैम्बर के माध्यम से उनको सॉल्व आउट करेंगे। सर हमारे अभी हमने रिलेशनशिप मैनेजर बना रखा है स्टेट वाइज, मैं इसीलिए उनको दोनों को लेके आया हूँ। पांचाल जी खड़े हो जाएं। पांचाल जी आपके मेन रिलेशनशिप मैनेजर हैं गुजरात स्टेट के लिए, और मीत साहब बैठे हैं उधर। मीत जी आपके मतलब ऑल्टरनेट हैं, ताकि कभी पांचाल जी भी थोड़ा व्यस्त रहते हैं, तो और दोनों को लेके आया हूँ ताकि मतलब मेरे को तो आप पकड़ ही सकते हैं, इन दोनों को भी पकड़ सकते हैं, कोई काम नहीं हो तो। हाँ जी, हमारे साथ गिफ्ट सिटी में रहते हैं, पर ये लोग ट्रैवल करते रहेंगे, जब आप बुलाएंगे तब ये आ जाएंगे। सूरत में जब आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे। हाँ जी। सर वेबसाइट पे इनकी सबकी फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम सब दिया हुआ है वहां पे ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच सर। अभी ये इतना अद्भुत सेशन के बाद में मैं कतारगाम वराछा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के प्रेसिडेंट प्रताप भाई को विनती करता हूँ कि कुछ रिमार्क सेशन के बारे में, कुछ कंक्लूजन रिमार्क दीजिए आप प्लीज। એની પહેલા બધાને મિત્રોને વિનંતી કરું કે જે લોકો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં મેમ્બર ન હોય
એ મેક્સિમમ સંખ્યામાં બધા મેમ્બર બનજો, જેથી કરીને આપણી યુનિટી વધારે મોટી મજબૂત થઈ શકે અને કોઈ પણ રજૂઆત આપણે કરવી હોય પ્રતાપભાઈ તો અસરકારક થઈ શકે. એટલે ઓલ આર કાઇન્ડલી રિક્વેસ્ટેડ ટુ બી મેમ્બર ઓફ SGCCI. થેન્ક યુ. રમેશભાઈ, મારે તો બીજું કંઈ કહેવાનું છે નહીં, પણ આપણે અશોક કુમાર જે ગૌતમ જે આ બધી વાત કરી, આપણે ગુજરાતીમાં સમજો છો ને, હિન્દી બોલવાની જરૂર નથી ને. પેલા તો આપણે ઓલો જે ક્રાઇટેરિયા જે 25 કરોડ વાળો જે નીચો કરવો પડશે, બરોબર? એટલે એ તો હવે આપણે એસોસિએશન થ્રુ ને ચેમ્બર થ્રુ આપણે કરશું. બાકી જે ઓલા ભાઈ જેમ કીધું કે જે 90% ગોલ્ડની જે છે એનું નીચે કરીને એ બે વસ્તુ આપણે કરવાની થાય. એ કરતા ખાસ જે રમેશભાઈ કીધું કે ચેમ્બરના જે મેમ્બર ન હોય ને એ મહેરબાની કરીને થઈ જશે. શું કામ કે ગમે ત્યારે કાંઈ પણ વસ્તુની જ્યારે આપણે જરૂર પડતી હોય કે ગુજરાત લેવલે કે કેન્દ્ર લેવલે, ત્યારે આપણે ચેમ્બર થ્રુ જવું પડતું હોય છે ને. ચેમ્બર જ આપણે એમાં સફળતા મેળવી શકતું હોય છે. તો ખાસ એ ધ્યાન રાખજો. પ્લસ જેના ફેક્ટરી હોય કે દાખલા કે રિટેલ હોય કે હોલસેલ હોય, એ બધાના એસોસિએશનો છે. એ એસોસિએશનમાં આપ સભ્ય થઈ જાઓ. કારણ કે અહીંયા એવું છે કે આપણે એક વસ્તુથી એક વાતથી કોઈ સાંભળતું નથી. એટલે તમારે ખરેખર એસોસિએશનમાં જોઈન્ટ થઈ જવું જોઈએ અને એની સાથે સહમત ને સહકારથી એનું સોલ્યુશન લાવવું પડે. દાખલા કે તમે હમણાં અમને કીધું કે આવું મારે ગોલ્ડમાં થાય છે, હવે જોજો તમે જોજો કે 10-15 દિવસમાં તમારું સોલ્યુશન આવી જાય. શું કામ? કારણ કે અમે તમારા પ્રમુખને કહીશું કે ભાઈ તમે આ કેમ આવું કરો છો? કારણ કે તમે બધા વચ્ચે આવ્યો હોય તો મહેમાનો હોય એટલે થોડુંક અમારું નીચું દેખાય. કારણ કે એટલા એસોસિએશન બેઠા હોય ને આપણું કામ ન હોય ને ગૌતમજીને એવું લાગે ને કે અહીં બધું આવું જ ચાલતું હશે એમ. કારણ કે હજી તો ગુજરાતીમાં સમજે ત્યારે ખબર પડશે. એટલે આપણે બધા જોઈન્ટ થઈ જાઓ અને કાંઈ પણ કામ હોય તો અમે બેઠા જ છીએ, કરીએ જ છીએ, ગમે ત્યારે ગમે એવું કામ હોય. બરોબર છે? એટલે જે હવે આમાંથી જ્યારે નીચું સફળતા જ્યારે નીચે આગ કરશું ત્યારે આપણે બધાને ગૌતમજી એમ કીધું છે કે 50, પણ જો 5 કરોડ સુધી થઈ જાય તો આપણે 100 પણ કરી દઈશું. બરોબર? કારણ કે એ તો પાછું આપણે ઓલું ઢોલ વગાડીને કીધું કે આ કરવાનું છે, ફટથી કહી શકશું. બરોબર? થેન્ક યુ. આભાર. જય ગુજરાત. થેન્ક યુ. મિત્રો ખાલી 2 મિનિટ ઉભા રહેજો. આપણા ડાયનેમિક સેક્રેટરી, મોસ્ટ ડાયનેમિક સેક્રેટરી ભાવેશભાઈ ટેલરને વિનંતી કરું કે આભાર વિધિ કરે અને આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણા ઉપપ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વઘાસિયાએ અને પ્રવીણભાઈએ જે વાત કરી, થોડો હું પ્રકાશ પાડવા માંગુ છું કે જે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની એમને જે વિનંતી કરી એટલા માટે જરૂરી છે કે ચેમ્બર ઓફ कॉमर्स सर 1940 से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर कार्यरत है अशोक जी, जो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए अगर कोई भी प्रश्न होता है तो स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे रजूआत करता है और उसका अच्छा सॉल्यूशन भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से. क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में टोटल 10,500 डायरेक्ट मेंबर है और विविध 150 एसोसिएशन थ्रू 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स चैम्बर में जुड़े हुए हैं. और चैम्बर बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे कॉन्क्लेव्स और बहुत सारी एग्जीबिशंस करती रहती है. करीबन 365 डेज में से करीबन 250 डेज डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. तो आप सबको वापस एक बार मैं विनंती करता हूं कि अगर आप चैम्बर्स में, अगर आप मेंबर्स बनने में चूक गए हो, मैं चूक गए इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो आप जरूर सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर होने ही चाहिए. क्योंकि वापी से भरूच तक कोई भी अगर बिजनेस में है तो चैम्बर्स के साथ जुड़े होंगे तो आपके बिजनेस का ग्रोथ को कुछ और ही लेवल पे होगा. और उसकी मेंबरशिप सिर्फ 15,000 प्लस टैक्स से चालू होती है, जो लाइफ टाइम के लिए है. तो आप उसके मेंबर जरूर होने ही चाहिए. तो ये चीज थी चैम्बर के मेंबर के लिए. और हमारे प्रमुख श्री हिमांशु भाई बुडावाला जो आज आउट ऑफ सूरत है तो आज नहीं आ पाए हैं, तो प्रमुख श्री हिमांशु भाई बुडावाला, यहाँ पे उपस्थित हमारे उप प्रमुख श्री रमेश भाई वगासिया, हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट श्री आशीष भाई गुजराती, हमारे ट्रेजरर श्री भावेश भाई गढ़िया और हमारे चेयरमैन और ये बुलियन कमेटी के जो चेयरमैन है और आपके जो इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन और बुलियन के भी चेयरमैन है और हमारे
ग्रुप चेयरमैन परेश भाई लाठिया जी जो अभी यहाँ से निकले हैं, वो सब की तरफ से मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी भावेश टेलर सबसे पहले शुक्रगुजार करना चाहता हूँ अपने अशोक भाई गौतम जी को कि जिन्होंने आज यहाँ पे आके, यस डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये पूरी माहिती दी और ऑल द वे डायरेक्ट लंदन से यहाँ आए सीधे और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे 2 घंटा यहाँ पे बिता के हमें जो सारी बातें की, हमें ज़रूर उसका फ़ायदा आने वाले समय में होगा। आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर में जो बात की उनकी भी ज़रूर चैम्बर की तरफ से नोंद लेके उनको हम रजुआत करेंगे और हम चाहेंगे कि उसका ज़रूर से सॉल्यूशन होगा। हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के श्री नीलेश लागरिया जी भी यहाँ पे है, उनके जो भी मेंबर्स हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ वराछा कतारगाम ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रताप चौवड़िया जी है और उनके भी जो भी मेंबर्स हैं उनके भी शुक्रगुजार है। और साथ साथ हमारे जो भी प्रेस मीडिया के रिपोर्टर यहाँ पे अगर जुड़े हैं या तो फिर हमारे जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उनके भी शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे न्यूज़पेपर्स में वो बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं चैम्बर के उनके भी हम शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारा नॉर्मली टाइम 7 का रहता है पर आगे अब 8:30 बज गया फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू टू ऑल मेंबर्स एंड वी विश के हमारे ऐसे प्रोग्राम होते रहे और आप जुड़ते रहे। थैंक यू।